जो आ रहा है बहुत आपकी फ्लिकर कर रही है पिक्चर. Yes, ma'am. Okay. It has been useful for me to read the role plays that you sent me, and I'm still getting some more people with the modification and everything. What is it that you learn from the interactions that you sent me mail and I've sent you some feedback? What is it that you have learned as a lawyer? As a lawyer, I have learned that I have to be patient with my client and hear them out. No. When I gave you the feedback on the scenario that you sent me, so from my feedback, have you learned anything about lawyering? The exercise was to write a role play. You wrote a role play. I gave you a feedback. So was there any learning as a lawyer in that interaction? Ma'am, which type of question lawyer will ask? I'm glad to hear that, because this is how you can improve. So this is the problem you have presented as a client, but the kind of questions I've asked, the details, this is what you have to keep track of, and you will be hearing the problem. That you should be asking for more details, you'll be getting for evidence, you should be getting for more detailed information on certain relevant points. But as a lawyer, the client will tell you what they think is appropriate. Some of you have sent me a problem which doesn't make a case unless there's some more information there. Some of you have not given me the dates. Therefore, without the dates, we do not know whether there has been condonation. There has been, the life has moved on after the incident which happened. So therefore, for different scenario, different kinds of questions, more detailed information is required. The other thing what you learned was that when you are talking to a client, how to use simple non-legal language. Some of you did use the legal language, and I said, okay, as a client, would you know this? But sometimes, because the paper says it is 149 or it is 302 or whatever the section number has been mentioned in the paper, so then asking for papers, do you have these papers? What kind of papers will be required in which scenario? So therefore, I do hope that this was also an exercise in a sense of drafting, because when it comes to the plaint, telling the facts have to be simple. When you write down a plaint, when you narrate the facts, it should be done in a simple manner. Of course, we have not followed the format of a plaint, but the manner in which the information is to be gathered and has to be written, that's also what aspects of the information must be there in the plaint. So to some extent, that exposure was also there. So today, what we are planning is, because we still haven't had any conversation about the actual interview, we'll have some conversation there. And I have a suggestion, I want to have a question for you actually, that when you have written the role plays, I want you to hold on to that role plays and use it for your exam, not for simulation activity. Simulation, we will think of other scenarios. So we will want 2 volunteers today, and a little later, but certainly today's class is a 2-hour class. So we will have the actual simulation also. And I've just now sent you an observation sheet. I do not think that most of you would have had a chance to look at it, but if you haven't, then very quickly perhaps have a look at that sheet, because these are some of the points. There will be many more, but these are the key points we want to keep track of as we do the simulation. We will use the same thing also when we will do the final exam. So we will use this chart for observation also. We have a different chart also for self-assessment, a much more detailed chart. That is in our case material. So that also we can have a look at later, and that will be the self-assessment. We will ask every student to do that for their own interview when it will be the part of the exam. So today, I will want 2 volunteers, one who will want to be the lawyer, the other who would want to be a client, and the client, because I'm saying don't use the problem you have framed already that you keep for your exam.
But today, think of your favorite case from criminal law or family law or contract law. Become the person, whoever has, suppose there's a criminal law case and there is an accused person. So become that accused. The facts are there in the case. If you remember, anyone who remembers your first year cases, so think of being that person and then come for legal advice. So the lawyer will, of course, have to figure out which client it is, and maybe it will be a little easier for the lawyer also. If they remember the same case, they would know what are the questions to ask. But otherwise, they'll have to ask more questions. But just as a starting point, let's do that. Or otherwise, we can. So we'll do first round on that. That we will become a client from one of the cases we have read, either for family law, criminal law, tort law, whatever case you remember, the facts of the case you remember. So become the person who was party to that case, and then consult a lawyer. So second round, you can again think of a problem other than the case law already known. So if somebody is able to think of one more situation, and you have been all very fertile in thinking of situations in putting the problems out. I wasn't very sure that all of you have framed those situations yourself, or you have relied on Google to find your problems. Because some of the problems I felt were from Google, some of them were framed by yourself. And I would encourage you to think of your own problems, your own situations, rather than copying from other. Because this is the time you start doing things by yourself. In the court of law, you won't be able to take help from Google and say, oh, this is the argument given there, so I'll use that. You'll have to apply your own mind. So that's the plan today. So we'll have a couple of interviews in simulation after we have been through the basic understanding of client interview. Did you read the materials when I asked you to read the chapter on advice? You all read that reading? After Don Peters' reading, there's another one on advice. मैं तो नहीं बताने वाली हूँ अगर नहीं पढ़ा है तो. So okay, anyone know on your? Did you look at the slides which we shared with you? एक link share किया था ना आप लोगों से? Exhaustive link. Let me see. Client interview material करके जो था. I want you to look at. I'll share my screen. Yeah. I'm going to share this screen and we can have a look at this. I don't know how many of you have looked at. Okay, here it goes. You can see that? But now I can't see. Can you see this slide? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. So 7 stages of interviewing the client. Attending, we're saying initiating, responding, building trust, rapport with the client. So what are the kind of things you will do in this one?
is it that you might be saying, actual saying in this case? Okay, I want a volunteer who has come to meet the client, who has come to meet the lawyer. Any volunteer? I can be the volunteer. ओके, रचित तो सबसे ज्यादा फट से आ जाते हैं, उनको एक्टिंग करने में मजा आता है ना. वेरी गुड. सो रचित, यू हैव कम टू मीट मी. आई एम द लॉयर. स्टार्ट. So, Mrs. Wade, I have this problem with, there's this issue with my रचित home. रचित रचित, हम लोग सब यही सिखाते हैं. सबसे पहले कहते हैं गुड आफ्टरनून. तो नमस्ते Yeah. वेद मैम, मुझे Sorry, आपकी sorry. फ्रेंड ने, मेरे एक फ्रेंड ने आपका रेफरेंस दिया है. ऐसे करके शुरू करेंगे ना, सीधा थोड़ा जंप कर जाओगे कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है. मैंने तो आपको काई नहीं प्रॉब्लम बता, मुझे सब मिलने आए हो मुझे. So in the beginning itself also you have to also think कि आप इसको जाके मिलोगे तो उनको बोलोगे ना नमस्ते तो करते हैं, हम सभी लोग करते हैं. कि सीधा आप लॉयर के चेंबर में घुसोगे और बोलोगे कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है. कैसे बातचीत शुरू करेंगे? फिर से करेंगे शुरू. Good afternoon, ma'am. So my name is Rachit. Miss Anukriti has given me your reference, and this is something that I need to discuss with you. या अनुकृति डिटेल में बैठ जाओ, आराम से बैठो, कोई Thank you. जल्दी Thank you. नहीं है. हाँ, आज हमारे पास थोड़ा टाइम है, हम 10-15 मिनट आराम से बात कर सकते हैं. और सीधी सी बात है, लॉयर से मिलने आए हैं तो कुछ ना कुछ तो वजह है. बिल्कुल, आपको बिल्कुल. अनुकृति को आप कैसे जानते हैं? अनुकृति मेरे कॉलेज में मेरी बैचमेट थी, तो हम लोगों ने साथ में पढ़ाई करी है. और it's been 6-7 years now. अच्छा रचित, देखो पहले मैं एक बात बताना चाह रही हूँ आपको. एज ए लॉयर ही हमारी जिम्मेवारी होती है कि जो भी हमें क्लाइंट बताएगा वो हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे. तो आप कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है. पूरे आराम से तसल्ली से आप मुझे बताएं क्या पूरी बात है. कि अगर मुझे पूरी बात पता चलेगी तभी मैं बता पाऊंगी कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, हम क्या इसमें रेमेडी ले सकते हैं. तो आपको झिझकना नहीं है और सच सच बताना है. क्योंकि कई दफा होता है कि क्लाइंट सोचता है कि अगर मैंने ये बताया तो पता नहीं मैडम क्या सोचेंगी. पर अगर वो बात आपने बताई नहीं और दूसरी पार्टी ने बताई और अचानक से मेरे सामने आई तो बहुत परेशानी हो जाती है. तो आप एक तो ये विश्वास रखें कि जो भी आप मुझे बताएंगे वो पूरा कॉन्फिडेंशियल रहेगा. जब तक आप मुझे परमिशन नहीं देंगे किसी से भी शेयर करेंगे, इवन कोर्ट से, जब तक आप नहीं कहेंगे ये बातें जो भी आप मुझे बताएंगे वो हम किसी से शेयर नहीं करते हैं. ये हमारी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और जो हमारी कंसल्टेशन है, हम कंसल्टेशन का चार्ज नहीं लेते हैं. अगर आप हायर करना चाहोगे हमारी सर्विसेज और जरूरत होगी तब हम आपको बता देंगे कि किस तरह का खर्चा वगैरह होगा, मगर आज की कंसल्टेशन फ्री है. तो आप कुछ पानी वानी पियेंगे? बिल्कुल, पानी, वाटर वुड बी. अच्छा, तो आप लीजिए, पानी पीजिए, यहाँ रखा है साथ में. थैंक यू. चलिए आप बताइए क्या बात है. मैडम, स्टॉप. ये हमारा इंट्रोडक्शन था ना. बिकॉज वी आर एट दिस स्टेज, वी आर सेइंग इनिशिएटिंग, रिस्पॉन्डिंग, बिल्डिंग ट्रस्ट, रेपो. ये सब हम उस स्टेज की बात, इस चीज का डिमॉन्स्ट्रेशन था ये. So when you are, as a lawyer, when you will be conducting your interviews, remember to do 2-3 things. One, greetings, establishing rapport. तो जब मैंने पूछा कि अनुकृति को कैसे जानते हैं, so वो हम उसी कॉन्टेक्स्ट में करेंगे, रेपो बिल्डिंग कर रहे हैं. अच्छा ठीक है, अनुकृति को आप जानते हो, ऐसे जानते हो और आपको अनुकृति ने रेफरेंस दिया है. तो अगर मैं चाहूँ तो ये मैं अनुकृति को कैसे जानती हूँ. हाँ, उसने भी एक दफा वो आई थी मेरे पास एडवाइस के लिए. या मैं पहले पार्ट टाइम टीचर थी यूनिवर्सिटी में, तो उसको भी मैंने पढ़ाया है. कुछ भी है ना. दिस इज ऑल रेपो बिल्डिंग. सो व्हेन आई एम आस्किंग यू, देन आई एम गिविंग यू रीअश्योरेंस. तो भी आप कह रहे हैं ये सारा कॉन्फिडेंशियल है, ये हम किसी को नहीं बताएंगे, बेझिझक पूरी डिटेल हमें बताइए.
और आपको मैंने ईज भी कर दिया कि हम इस बात का चार्ज नहीं करेंगे, अगर आप हायर करोगे तो अब हम फीस की बात करेंगे. So I've handled 3 things in this small interaction. So when you initiate, remember that you have to do rapport building. You should put the client in comfort zone and also assure confidentiality. The second stage क्या है? Listening process with empathy. तो जो हमने सब किए थे ना सवाल, feeling reflection, वो सब passive listening. So शुरू में passive listening with empathy. Then what else do we do? Facts gathering. Where when it comes to facts gathering, what do we do? What are the techniques for doing fact gathering? What are the questions good for initial empathy listening वाले जो हम शुरू में कह रहे हैं, listening, open-ended question usually. Then when it's fact gathering, Probably close-ended or guided questions. yeah, more preferably close-ended, but when it is a sensitive thing, then we can think of the other kinds as well. So जब हम probing करते हैं, you've got 2 techniques there. One we call as the funneling technique. उसने बहुत बड़ा सा पता है कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, मुझे बहुत मेरा हस्बैंड मारता पीटता रहता है. So this is the wider scenario. तो बोला कि अच्छा लास्ट इंसिडेंट क्या हुआ था, उसकी डिटेल बताओ, उसने क्या तुमको चोट पहुंचाई, किस वजह से हुआ. सो आई एम बिल्डिंग अप डिटेल्स, बट आई फ्रॉम द वाइडर फील्ड ऑफ रोज, मतलब अक्सर मारता है टू वन इंसिडेंट. सो आई फनल आउट. फिर उसके बाद में फन में एक इंसिडेंट किया, उसने पिगी बैकिंग. तो उसने बोला कि उसने मुझे जो है परसों बस आया था, शराब पिए हुए था, और उसने मुझे बोला खाना दे दो. मैंने कहा कि दिया खाना, तो बोला बस नाराज हो गया कि ठंडा कैसे दे दिया, प्लेट ऐसे फेंक के मारी और मुझसे लड़ने लगा. मैंने कह दिया कि अभी तुम इतनी देर से आओगे तो कैसे तुम्हें खाना गर्म मिलेगा. तो उस बात पे तो बस उसने मुझे मारना शुरू कर दिया. उसने ये इन्फॉर्मेशन उसने अगर हमें दी तो हम उसको पिगी बैकिंग करेंगे कि अच्छा फ्रॉम दिस ओनली, कि अक्सर सपोज फनलिंग में क्या था कि बड़े से ना छोटे में आए. अब पिगी बैकिंग में या तो हम इसी की फर्दर डिटेल्स बना सकते हैं कि क्या मारा उसने, हाथ से मारा, थप्पड़ से मारा, थप्पड़ मारा कि जूते से मारा कि पांव से मारा कि सामान छड़ी लेके मारा. तो दिस इज बिल्डिंग अप द फर्दर डिटेल्स बाय पिगीबैकिंग ऑन द इंफॉर्मेशन शी हैज गिवन अस. So we can use, and these are all pointed questions, these are all close-ended questions. So we can do either funneling or we can do piggybacking in order to build up the details. तो जो क्लाइंट होता है अक्सर वो आपको ब्रॉडली एक कहानी बताएगा पहले अक्सर, क्योंकि अभी हम लोग सिमुलेशन में कुछ लोग होंगे कि वो पूरी डिटेल बताना चाहेंगे. सो रिमेंबर दिस, ट्राई टू बी थिंकिंग ऑफ सिनेरियो. अगर आप इसको असल में मिलने जाओगे तो सारी चीजें आप एक पूरी डिटेल जो मैंने आपको पूछी है, ये डिटेल्स आप सोच के रखें, तो आप सारी की सारी डिटेल्स पहले राउंड में बताने की जरूरत नहीं है. तो पहले आप अपनी ब्रॉड कहानी ही बताओगे. देन we want to practice as a lawyer to do the funneling or piggybacking and close-ended question, building up details. So give the opportunity to the lawyer to ask these questions. So certainly that's what we are talking about, that this is facts gathering, setting and identifying the claim and legal problem. मैंने कुछ लोगों को पूछा आपसे कि इसमें क्लेम क्या बना, कुछ ने एक आध मैंने कहा इसमें तो लीगल केस कैसे बनेगा. तो हो सकता है ना बने लीगल केस, दैट्स ओके, ऑल राइट, बट देन द लॉयर शुड बी एबल टू से कि अगर ये इंफॉर्मेशन ही है तो इसमें आपका कोई लीगल केस नहीं बनता है. लीगल केस बनने के लिए ये चीजें होनी जरूरी है. एंड नेचुरली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम you may not know all the sections, all the legal positions at that point of time, but that is the stage where to start thinking इसमें ऑन द फेस ऑफ इट कुछ लीगल केस लग रहा है कि नहीं लग रहा है. लग रहा है तो आपको क्योंकि हम अभी नौसिखिए लॉयर्स हैं, अभी तो है भी नहीं एक्चुअली, हम तो सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम लॉयर्स हैं, तो हम उसमें कहेंगे कि अच्छा ठीक है, मुझे ना ये इन्फॉर्मेशन और चाहिए ये डिसाइड करने के लिए आपका लीगल क्लेम. हमें तो टाइम चाहिए ना, हमें तो हम घर जाके पढ़ेंगे इसका के बाद में हम अपना किताबें निकाल के देखेंगे इसका क्या केस बना कि नहीं बना, जो हमें on the face of it lag raha hai. But because sometimes you would have exact knowledge
most of the time you would not have the exact knowledge. Despite you having cleared all papers, when it came to application, कुछ चीजें या आपको याद रहेंगी, कुछ नहीं याद रहेंगी. तो उसमें अगर आपको ठीक से पता है या आपने जो हमारे 4 एरियाज हमने कहा है ना अपने एग्जाम के लिए, तो उसकी किताबें आप पास रख सकते हैं. तो क्विकली डबल चेक करना हो कि अच्छा ये डाइवोर्स का केस है तो ये हेडिंग बन रही है कि नहीं बन रही है, कौन से क्लॉज में जाएगा, तो वो अपना डबल चेक भी कर सकते हैं. क्योंकि ये एग्जाम वैसा थोड़ी कि आप एक्ट खोल कर नहीं देख सकते हो. एक्चुअली आप इम्प्रेस भी कर सकते हो, देखो देखो मैंने सेक्शन देख लिया, ये वाला सेक्शन आपको लागू होता है. तो आपको भी मदद मिल गई, क्लाइंट को थोड़ी पता लगा कि आपने तो कंफर्म करने के लिए देख रहे थे. So try out these techniques for you to show your that you are in command of the situation. फिर इसमें जो हम कहते हैं identifying the claim and legal problem. The job of a lawyer is primarily to convert social facts into legal claims. तो सपोज उसने बोला कि ऐसे ऐसे झगड़ा हुआ और उसको मैंने फिर डंडा मारा. अभी जैसे आया था ना रिसेंट एक केस आया था, तो उसमें हस्बैंड मारा था बीवी को, बीवी ने उसी से रॉड छीन के उसको मारा और 3-4 दफा मारा और उसको पेट में छाती में जहां पे भी मारा वो आदमी अल्टीमेटली 3 दिन बाद वो मर भी गया. उसमें तो ये सोशल फैक्ट्स है ना. इसमें केस क्या बनता है, मर्डर का बनेगा कि प्राइवेट डिफेंस बनेगा कि ग्रेवेंस अगेंस्ट प्रोवोकेशन बनेगा, ये हमारा काम है. उसको तो पता है फैक्ट्स ये थे, वो मुझे मार रहा था, मैंने उसके रॉड छीनी, उसको मारा और वो मर गया 3 दिन बाद. दिस इज अ social fact scenario. But whether this claim, legal claim is कौन से सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स फुलफिल कर रहे हैं. प्राइवेट डिफेंस के सपोज हम कहते हैं प्राइवेट डिफेंस में इसका केस हो सकता है, तो हम प्रोबिंग फर्दर प्राइवेट डिफेंस ही करेंगे. ये उसने क्या चोट पहुंचाई थी, क्योंकि हमारा प्राइवेट डिफेंस में है दैट यू कैन कॉज द इंजरी प्रोपोर्शनेट. प्रोपोर्शनेट नतीजे में क्या सवाल पूछने पड़ेंगे, जब तुमने डंडा छीना उससे तो तुमको कहीं चोट लगी थी, तुम्हें उस वक्त में क्या लग रहा था कि अगर तुमने डंडा नहीं छीना तो वो क्या कर देगा. क्योंकि उसमें एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट. जी मेरा तो पहले यहाँ से खून निकल रहा था, गले पे उसने काट दिया था, वो बिल्कुल कोने वाली आयरन रॉड थी, मैं नहीं मारता तो वो मुझे मारता मैं तो मर जाती. If this is her apprehension, then we are getting a very clear case built out on private defense, justifying even causing death of the other. But hey, this should be, the action should be taken only till the point when the continued danger continues. है तो उसने जब आपने पहली दफा मारा तो फिर उसको आपने 3 दफा मारा ना उसको, तो आपने जो पहली मारा फिर उसने क्या हुआ, फिर दूसरी मारा, फिर तीसरी बारी मारा, तो वो बेचारा नहीं क्योंकि बेहोश पड़ गया, मैं फिर भी मारती रही, सपोज 2 दफा और मारा, then it is exceeding the right of private defense. You will have to then, no, this is where we are going to find out the details. अभी उसने मारा 3 इंजरी उसको की, मगर 3 इंजरी किस स्टेज में की. जब वो आदमी बेहोश होके गिर गया, वो गिर के मतलब तड़प रहा था, मैंने क्योंकि मुझे तो इतना डर लग गया कि मैंने उसमें कर दिया. So then it will be culpable homicide, not amounting to murder. पर अगर वो अभी भी मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा था, तभी मैंने उसको मारा 3 बारी में भी, वो फिर भी स्ट्रगल कर रहा था, so then it is only a private defense and not exception. This is not exceeding the right, because the apprehension of grievous hurt or death was very much there. So this is how you build up the details and to ascertain कि हमें लीगल क्लेम इसमें से अभी इसमें 3 पॉसिबिलिटी हो सकती थी. सडन फाइट हो सकती थी, ग्रेवेंस सडन प्रोवोकेशन हो सकती थी, एक्सीडिंग द राइट टू प्राइवेट डिफेंस हो सकती थी, मर्डर हो सकती थी, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. 5 ऑप्शन लगती थी इस सिनेरियो में ऑन द फेस ऑफ इट. उसमें से कौन सी वाली एग्जैक्टली बनेगी विल डिपेंड ऑन आवर क्वेश्चनिंग एंड फर्दर डिटेल्स भी गैदर. सो वो तो आपको सोशल फैक्ट्स बताएगी, आपको अपने दिमाग में फ्रेमवर्क रखना है कि अच्छा मेरा ये वाली इंफॉर्मेशन आएगी तो ये केस बनेगा, ये इंफॉर्मेशन आएगी तो ये केस बनेगा. So that is how when we are talking about where it says na, and the slide says setting and identifying the claim and legal problem. So 5 options है assessment of the claim कि actually जब हमने further details पता कर ली तो actual में हमारा केस कहाँ, where are we going to fight our case. तो नेचुरली इस वाले केस क्रिमिनल केसेस में तो होगा कि पुलिस ने अपना केस बनाया है तो उनकी हम असेस करेंगे कि पुलिस का केस क्या बना है और हमारी उसमें डिफेंस क्या होने वाली है, बिकॉज दीज आर द फैक्ट्स व्हिच आर गोइंग इन आवर फेवर.
So that's how we are doing the assessment. This is all happening in the interview itself. Counseling the client about the action to be taken and establishing so okay, काउंसलिंग में यही है कि अच्छा अब आपका ये केस बन रहा है, तो केस तो चलेगा। अगर मर्डर का केस, पुलिस तो इसमें मर्डर का केस बनाएगी, एक्चुअली बनाया देता, जो हमारे अखबार में फैक्ट्स हैं उसमें उन्होंने मर्डर का केस बनाया और जज ने उसको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर पे कन्विक्ट किया है। ताकि मेरे हिसाब से जो अखबार में फैक्ट्स थे उसके हिसाब से केस तो प्राइवेट डिफेंस का बनता था, बट एनीवे, सो दैट अपार्ट, सो देन वी विल से कि ठीक है केस तो चलेगा, मर्डर का केस है तो ट्रायल तो होगा। पर जब ट्रायल होगा तो पहले तो हम एज अ लॉयर हमारी क्या जिम्मेवारी होगी, हम देखेंगे कि पहले पुलिस ने केस ठीक से बनाया कि नहीं, प्रूफ किया कि नहीं किया है। और अगर वो कहते भी कि हाँ भी आपने ये सब किया है, ये ऐसे ऐसे किया है, तो ये वाले सर्कमस्टांस में है कि हम आपकी प्राइवेट डिफेंस का केस लड़ेंगे। उस वक्त में हमें जो भी हमें विटनेसेस चाहिए होंगी वो सब तैयारी हम करके रखेंगे, मगर इस स्टेज में तो हम तो उसको एडवाइस कर रहे हैं। और लास्ट में है एस्टैब्लिशिंग एडवोकेट क्लाइंट रिलेशनशिप। इसका क्या मतलब है, आपने सब समझा दिया उसको, अभी तक वो आपका क्लाइंट है नहीं। Ma'am, moving to the next step, हाँ जी, whether he wants to moving to the next step where he wants to or the client wants to go ahead हाँ वो आपके Giving the साथ filing the trust case. देना चाहता है तो भाई ये मेरा फीस स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे हम चार्ज करेंगे। या फिर आपको अगर ये फीस सूट नहीं करती है तो आप फिर लीगल एड में भी जा सकते हैं, क्रिमिनल केसेस में फ्री लीगल एड भी मिलती है। या मैं भी फ्री प्रो बोनो के डिपेंडिंग होकर के मेरी, तो फिर आपने इकोनॉमिक सिचुएशन पूछी उसकी, पहले तो कि आप हायर करोगे नहीं करोगे, फिर फी अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। फी नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो फिर हम इसको लीगल एड में डाल देंगे और तभी मैं लॉयर आपका मैं ही बनूंगा, मगर फिर मैं पैसा लीगल एड से क्लेम कर लूंगा। So those are the kind of thing that, because it's only after you sign the वकालतनामा that he becomes your client. जब तक आपका क्लाइंट नहीं है, आपका कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज फिर भी लागू होता है। अब बात सपोज उसने कहा नहीं मुझे आप, अच्छा मैं ना अभी आपको सोच के बताऊंगा, वो गया दूसरे लॉयर के पास पूछने, देखें वो भी दूसरा लॉयर भी क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो तो जज ना कि क्लाइंट जो लॉयर है वो रिलायबल है कि नहीं है। So you might go and want to consult another lawyer, and then उसको लगा कि नहीं इसका ज्यादा नाम है, तो नया नया सा लॉयर लग रहा है, बहुत कॉन्फिडेंट लग नहीं रहा था, तो चलो दूसरा लॉयर कर लेते हैं। Doesn't mean कि आप जाकर के किसी और को ये पूरी कहानी बता दोगे। You are still bound, even though the client lawyer relationship formally has not been established, but the interview itself was also part of that deal. तो आपका ऑब्लिगेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी तभी लगता है कि आप चाहे मुझे हायर करो या ना करो, आप जो भी मुझे बताओगे, आई एम नॉट गोइंग टू रिवील इट टू एनीबॉडी। दैट्स योर ऑब्लिगेशन, एब्सोल्युटली एसेंशियल। So that's what we're talking about, various stages. Excuse me, ma'am. जी Ma'am, what if the other party approaches me? Like अभी मेरे पास से जो client नो, सपोज पहले आपको एक क्लाइंट किसी भी साइड है, सपोज सिविल मैटर है, पहले एक पार्टी आई तो वो अभी फैसला कर रही है कि उसने फैसला करे कि नहीं वो आपका वो आपसे नहीं करेगी, फिर दूसरी साइड आ गई आपके पास ही। ऑन प्रोफेशनल एथिक्स प्रिंसिपल यू विल नॉट टेक that case because you have already received information which may be sensitive. You cannot take that party's case. Okay, ma'am. So that's very clear. There's no confusion about that. अगर आप एक पार्टी से बातचीत कर चुके हैं तो ये नहीं कहते ये पार्टी सपोज उन्होंने बोला ठीक है सर मैं आपको फिर कल आके साइन कर जाऊंगा, फिर दूसरी पार्टी होगी अच्छा आपको 20,000 दे दो ना, उससे आपसे 20,000 चार्ज लो, मैं आपको 40,000 दूंगा, आप मेरा केस ले लो, कि आपका तो बड़ा नाम है, दोनों साइड आपको ही चाहती हैं। यू कैन नॉट, दैट्स अ लिमिटेशन ऑफ योर प्रोफेशनल एथिक्स, दैट इफ यू आर स्पोकन टू वन पार्टी। कई दफा होता है कि पहले ए केस ए और बी में हुआ, आपने ए को रिप्रेजेंट किया, बड़ा अच्छा केस बना किया आपने, सेकेंड टाइम फिर से ए और बी का केस है, इस टाइम बी पहले आ गया, तुम्हें लास्ट टाइम देखा था तुमने बड़ा अच्छा केस लाया था, तो इस बार मैं आपको हायर कर लेता हूँ। यू कैन स्टिल नॉट टेक, वी हैव रिप्रेजेंटेड द अदर साइड बिकॉज उसके कुछ आपके ट्रेड सीक्रेट्स होंगे, कुछ इंफॉर्मेशन होगी अबाउट ए यू ऑलरेडी हैव एक्वायर्ड बिकॉज ऑफ योर प्रायर इंफॉर्मेशन। पर सपोज आपका ए एंड बी का केस था, आपने ए को रिप्रेजेंट किया, नेक्स्ट टाइम बी और सी का केस है, अब भी आ गया आपके पास, देन यू कैन टेक, क्योंकि बी का ए से कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बी का सी से कॉन्फ्लिक्ट है।
So he is impressed with your representation in the previous case. Now he wants to hire you. You can go for that. But you can't go for the same parties on the other side. Ma'am, I have a question here. Ji. Ma'am, like you told, right, in a divorce, right, when a petition has changed from a cruelty or any other ground to mutual, still the lawyer has to deliberate on this part, Which part? whether to take the case. Like in mutual, also you need two lawyers, right? Or you can have with one lawyer who was the against party. म्यूचुअल कंसेंट में एक A लॉयर and भी B. दोनों को कर सकता है. म्यूचुअल कंसेंट में वन लॉयर कैन रिप्रेजेंट बोथ द पार्टीज. Okay. बट दैट्स नॉट अ केस ऑफ कोल्यूशन वाला. तो उसमें तो लीगल प्रोविजन है ना, इसमें जरूरी नहीं है. Okay. Okay, so let's get back to this one. Structuring the interview, making known the process. कि हम ऐसे नो tell the client what will happen in the interview, how long you expect, emphasize what the client says in the remain. जो भी हमने बात की है, these are all further details. I'm not going to read them. You read them because you've not read them beforehand. पहले प्रोसेस बताएंगे उसको कि हम कैसे कैसे बात करेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा. Then जर्नल डिस्क्रिप्शन, जो हमने ओपन एंडेड क्वेश्चन बताया. समराइज रिफ्लेक्टिव स्टेटमेंट्स. chronological overview of the problem step by step, but do not probe for details at this stage. शुरू में जब आप लोग इंटरव्यू करोगे ना तो पता चलेगा कुछ लॉयर्स एकदम दे विल जंप इनटू द कन्वर्सेशन इमीडिएटली. उन्होंने 3 सेंटेंस बोले क्लाइंट ने और आपने प्रोबिंग क्वेश्चन शुरू कर दिए. डेवलप एंड वेरीफाई थ्योरीज, ऑल पॉसिबल क्लेम्स. जैसे मैंने कहा 5 ऑप्शंस हैं इस वाले इंसिडेंट में जो हस्बैंड को बीवी ने मारा. पॉसिबल थ्योरीज क्या हैं, फिर हर पॉइंट पे आप डिटेल इंफॉर्मेशन मांगेंगे so that you can decide which is the most appropriate one. उन्होंने ओपन क्वेश्चन शुरू से किया, how may I help you? I certainly believe that this is not the most appropriate question statement to say. You say, ठीक है, what brings you here? Tell me, what is it that you want to share with me? So somewhere establishing an equality platform rather than a hierarchical platform. Advantages, disadvantages. ये आप लोग सब पढ़ेंगे. ये मैं I do not want to spend class timing spending more time on this one. Encourage the client to talk when you ask open question. When we have done this, the pluses and minuses of different kinds of questions. So this is again examples of closed questions, advantages, disadvantages. Use narrow questions, what we call as funneling, to probe for more information. Eliciting detailed factual information techniques. So this is all there in our Don Peters article. Skills required. Listening, rapport building, make the client feel comfortable and open up to you. Put yourself in the client's shoes. Knowledge in the matter, your confidence in what you're saying, ability to speak in layman's terms. ये बहुत important है. Problems of listening, understanding. ये हम सब inhibitions में भी कर चुके हैं. And sometime your professional, अभी जैसे मेरी gender justice की क्लास होती है ना, तो उसमें the most usually I come across questions on dowry harassment. Stereotypical images हैं. सासें तंग करती हैं, लड़कियां मिसयूज कर रही हैं लॉ को, 498A का मिसयूज हो रहा है. These are very standardized questions which come in a gender justice class because that is our lived experience. तो अगर आप लॉयर हो और आपकी फैमिली में किसी महिला को या तो आप प्रताड़ित रहे हो या किसी महिला को आपको मालूम है कि उसने ऐसा मिसयूज किया, अगर आप
उस साइड से हो जहां आपकी बहन को प्रताड़ित किया जा रहा है, you will have more empathy to the client. If you are the one who has suffered false complaint, you are less likely to be with the client. And this is something very important to understand, that our experiences are only one experience. Everybody in their life have got many more experiences and maybe different than what ours have been. तो मेरे सर्कल में मुझे 5 लोग पता है जिनकी बीवी ने उनको फॉल्स कंप्लेंट में फंसा रखा है, पर ये मानना कि छठी उसी वाली कैटेगरी में जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे 10 और भी केसेस हैं जो आपके नॉलेज में नहीं आए जिनमें बीवियों को हस्बैंड ने असल में प्रताड़ित किया. सो यू वुड नॉट नो, डू नॉट प्री जज योर क्लाइंट्स. अभी हम लोग जब अकेडमी में थी तो we were talking about this whole scenario about women being more sensitive to the women's causes and vice versa. And we were talking to a woman judge who, when reflected, initial her position was that no, there are no women judges and male judges. Similarly, we might say there's no male lawyers and female lawyers, but there are. And in her own life, she had a lot of domestic violence as a judge, despite being a judge. And she was putting up with all that. So when she reflected, gradually over a period of time, she realized that when women came to her courts on a case of domestic violence, and they wanted separation or they wanted some kind of a legal remedy for themselves, she was not very sympathetic to them. She kind of felt that no, they should make more compromises, because she was making her own compromises in her own life. She felt that no, marriage is more important and the children are more important and you have to make those sacrifices and you must do that. So even though, so it's only after reflection that she realized it. And because these are kind of things when you come across and you reflect on your own self, then it is possible. Otherwise, we kind of stereotype, we do stereotypical images of people. There's another educated woman who has come to misuse the law. We might come with that assumption if we have a personal experiences otherwise. So it is very important, and this is what they in this slide you can emphasize upon, that if you have you have yourself suffered, or professionalism versus layperson information, the guilt feeling. So these are some of the things which the client may suffer, but also some of these may also impact your understanding of the client if you have been in any of these situations yourself as well. Some clients are very articulate, some clients may not be very articulate. So they may not know, understand. So we have been through all these, some of these points there. So please have a look at this. Overcoming listeners' barriers, exclude distracting noise and interruptions. Your desk is clean. Prepare yourself to listen for an extended period. Yourself physically to listen. Focus your attention on what the client is telling you without assuming what the client is telling you, without evaluation of what the client is telling, taking notes, listen responsibly, make sure you're prepared. So active listening. Can relate to all the conversation. Ji? Can we record the conversation for usually not. future? Usually not, because if it is a question of a child testimony, so where you are asking question and you want to use this testimony in the court because the child will not be divorcing, that's a different exception scenario. But because it's a client confidentiality, and this client is, you are on his side. So you may want to identify the gaps in the information. What is the use that you will want to make of that recording? Why do you think a lawyer should think of recording it? Ma'am, sometime if the conversation is longer and we are hearing his or her experiences, right, it will help me to go back and listen to it for the further discussion. No, the fellow is sitting right there. If you are forgetting something, ask her. She'll feel you are involved. So लिखो ठीक है, वो आजकल चला ना कि अभी आजकल हम लोग सब टेक सेवी होते जा रहे हैं टीचर्स. तो टीचर थे, प्रोफेसर बहुत ज्यादा बिजी रहते थे. तो एक दिन वो कुछ बिजी थे, उन्होंने सोचा चलो उस टाइम पे मैं जा रही था क्लास में, तो उन्होंने अपना जो है टेप्ड वो दे दिया, टेप्ड लेक्चर भेज दिया क्लास में.
फिर उनकी मीटिंग जल्दी खत्म हो गई तो चलो मैं क्लास में चला जाता हूँ। तो देखा बच्चों ने भी अपना टेप रिकॉर्डर लगा दिया था वहाँ कि हम भी बाद में सुन लेंगे, अभी हम भी फिल्म दिखाते हैं। तो वो तो वही हो गया ना कि अगर उसने क्लाइंट ने बाद में आपने बाद में ही देखना है तो फिर देयर इज नो रैपो बिल्डिंग ना, देयर इज नो एम्पैथी, देयर इज नो प्रोबिंग. So I don't think it's a good idea to even think about that. So unless you have a very specific reason why you want to record it, and of course you will have to take permission from the client for doing that. But I'm on the face of it, I do not find a reason. So speak down to a client. These are all the don'ts there. Playing with stationery. अभी हम लोग एक और बड़ा कॉमन जेस्चर है, दिख रहा है, पेन लेकर के घुमाते रहे ऐसे ऐसे, क्लास में बच्चे बहुत करते हैं। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो लग रहा है कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो, ये तो आप प्लेइंग विद योर पेन, आपको ऐसे ऐसे कर रहे हो, कुछ कुछ उसे करते चले जा रहे हो. So these are not very indicative of you being very attentive listener. Limitations of questioning. नोट टेकिंग पे अच्छा पॉइंट है इनका कि अगर आप बहुत स्टूडियसली सब लिखते ही चले जा रहे हो तो आई कांटेक्ट छूट जाएगा. तो जॉट डाउन अपने पॉइंट्स करो. जैसे अभी हम कहते हैं पीपीटी बनाते हो तो पूरे पूरे सेंटेंस नहीं लिखने हैं, सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं. हो सकता है अपनी पूरी कहानी होगा, ठीक है अब आप ना मुझे इस तरह लिख के भी दे दो, जिससे एक्यूरेटली पता चल जाएगा आपको भी. कोई अभी तो जैसे आपने एक्सटेम्पोर बता दिया, जब आप लिखोगे तो आपको भी कुछ ज्यादा डिटेल्स मालूम याद आ जाएंगी. तो आप जितना मुझे इसमें डिटेल लिख के देख सकते हो, आप मुझे नेक्स्ट मीटिंग तक लिख के पूरी डिटेल दो. दैट विल आल्सो वर्क फॉर यू, एंड देन यू कैन क्रॉस चेक कि जो आपने नोट्स दिए थे और जिन्होंने अब लिख के दिया है, कहते थे क्लाइंट आपको कुछ बता गया फिर उसने थोड़ा माइंड चेंज किया कि नहीं नहीं मैं ये भी बता सकता हूँ या बता सकती हूँ. So you might want to compare your notes also with the notes the client has prepared. So advising, general statement of law involved. तो हम बताएंगे उसको, जैसे अगर हमने अपना केस फिर से वापस चले गए, वो जो महिला ने पत्नी ने हस्बैंड को मार दिया, कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, अगर ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा है, पुलिस का केस में हमें ये देखना पड़ेगा. सो जनरल एडवाइस, बट रिमेंबर दिस हैज टू बी इन लेमैन्स लैंग्वेज. अभी हमारे कलीग ने वो भेजा information भेजी that I'm getting married. Very good information. Then he writes saying that the lady in question is also known to us. तो मैंने पूछा भाई वो लेडी इन क्वेश्चन क्यों है? लेडी ऑफ माई अफेक्शन हो सकती थी, द लेडी टू बी माई वाइफ हो सकती थी, माई लाइफ पार्टनर हो सकती थी, क्वेश्चन क्यों है? तो इसके नहीं लीगल नोटिस इतना देते हैं कि भूल जाता है कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में अब लेडी इन क्वेश्चन कहने की जरूरत नहीं है. इट डज हैपन that unless you pay attention, you start using legalese even when you're talking to. This is a non-legal conversation. मैं शादी कर रहा हूँ, इसमें कहा लॉ तो नहीं इन्वॉल्व है ना, इट्स एन इन्फॉर्मेशन, गुड इन्फॉर्मेशन. लेडी इन क्वेश्चन, हमने सबने बहुत खिंचाई कि लेडी इन क्वेश्चन क्या है भाई. सो एक ने बोला कि नहीं वो लेडी इन क्वेश्चन कह रहे हैं कि पता नहीं ऐसा वाइफ वो कैसी होगी. तो मैंने कहा जब तो फिर मैन इन क्वेश्चन भी तो होना चाहिए ना, उसका कोई सर्टेनिटी हुआ ऐसे हस्बैंड क्या होगा. So वो जेंडर भी हमने उसमें गुजार दिया बीच में. But this is all examples of how being in the law field, पहले हमें लीगल इंग्लिश नहीं आती है, फिर हमें नॉर्मल इंग्लिश भूल जाती है, या हिंदी for that matter. So we have to be very careful in our communication. तो एडवाइस में लॉटरी लिटिगेशन से क्या समझते हैं? में लिखा है कि लॉटरी लिटिगेशन पॉइंट है. Make any sense of this? Ma'am, it's a 50-50 kind of thing. You don't think that there's a case and you still want to go it. पर अगर हमें पता है कि नहीं नहीं पक्की बात का केस है तो क्या सर्टेनिटी है कि जीतेगा? Ma'am, lot of lawyers in motor accident tribunals take a cut of the award. That's independent. That's a different thing altogether. हिंदुस्तान में वो लीगल भी नहीं है. Asking for a cut if you will get award में 5% होगा, ये हिंदुस्तान में इलीगल एक्टिविटी है.
बहुत से लॉस कर रहे हैं, बट इट इज इलीगल, इट्स नॉट इवन अनएथिकल, इट इज इलीगल इन इंडिया। अमेरिका में नहीं है, पर हिंदुस्तान में है। But that's a different question altogether. Litigation में it's always a lottery because you do not know whether the judge will be convinced or not, whether you will have admissible evidence available or not, whether the admissible evidence was reliable or not. फैसला जज ने देना है. So you might think, we have a foolproof case, but you do not know how will you be able to convince the judge. जज के अपने बायस हो सकते हैं, उसकी अपनी बैकग्राउंड हो सकती है, आपका विटनेस लास्ट मोमेंट पे बदल सकता है, आपकी फोरेंसिक रिपोर्ट आ सकती है कि जी सैंपल तो पुट्रिफाइड हो गया था. 1000 things may happen from now till then. So even though you have a very strong case जहाँ 50-50 है, वो तो फिर बताओगे 50-50 वाली और लॉटरी वाली नहीं है. Even when you have a foolproof case, it may still not get you the relief. We'll do our best, and we do believe that it will happen, but the judgment is in the hands of the court. That is also useful to think of the alternatives than the court. Litigation जाओगे तो ये पॉसिबिलिटी है, अगर मीडिएशन में चले जाते हो तो देखो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, विन-विन सिचुएशन हो सकती है. It may be much less than a lottery. The decision may be in your hands because then you can negotiate. टाइम भी कम लगेगा. So somewhere you can introduce, if it is, अगर suppose ये डिटरमिन करना है कि लीगल इशू है, लीगल क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्वेश्चन है, certainly this can't be done in a mediation. But lots of family disputes, certainly जो अगर cognizable offense है उसमें भी कोई negotiation नहीं हो सकती है. Suppose अगर आपका cognizable offense है और not more than 7 years वाला नहीं है, जिसमें कि आपकी वो नहीं है ना, क्या उसको बोलते हैं, प्री बार्गेनिंग, तो प्री बार्गेनिंग का केस है, वहां ऑल्टरनेटिव बताए जा सकते हैं. So somewhere saying कि there is a possibilities of alternative way of handling it also. ये क्लियर कट केस लग रहा है कि ये फला फला केस बन रहा है, पर अगर हम तो इस वाली स्टेज में हम देखेंगे, अगर उनकी तरफ से कुछ काम है तो नेचुरली हम वहां पे एक्विटल करेंगे. बस सपोज एक्विटल नहीं होता है, वो फुल प्रूफ केस प्रोसिक्यूशन ले आता है, तो हमारे पास क्या ऑप्शंस है? प्री बार्गेनिंग में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, प्रोबेशन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते. ऑल दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द एडवाइजिंग प्रोसेस. तो क्योंकि क्रिमिनल केसेस में सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैडम अगर वो खुद ही मान रहा है कि मैंने मर्डर किया, या मैंने थेफ्ट किया, या मैंने डिफेम किया, या मैंने स्टॉकिंग की है, तो फिर क्या, फिर हम क्या करेंगे? So as a defense lawyer in criminal cases, the job of the defense is to find faults in the prosecution story. Remember, offense जो है, it is not a moral wrong. Offense is a legal category. And the burden to prove commission of the offense is on the prosecution. If the prosecution doesn't fulfill their own responsibility, they have not said कि इसने नहीं किया है. हमारा ये नहीं कहना है, हमें we as a defense lawyer don't have to prove that he did not do it. Our job is to prove that the prosecution hasn't proved that he has done it. So we can find loopholes in the prosecution story, contradiction in their witnesses, the inadmissible evidence. So your arguments in that case are going to be different. Civil matters में different है, मगर criminal matters में, even if your client says, yes, I have committed this heinous offense, your job in the court is not to prove his innocence. Your job is to show that there is benefit of doubt. The prosecution hasn't proved their case beyond reasonable doubt. So if that is not there, then you have to find out what is the appropriate sentencing possibility for him. Should he be released on probation? Should he be given lesser punishment? For what reason? So you can argue on the quantum of punishment. Should he be given only fine? So all those possibilities are there, and one can, should this money, the fine can be given as compensation to the client, to the victim party. So all those possibilities are there. So depending on step by step, at different stages, one can think of different advice on that one. And certainly costs involved, plan of action. So plan of action में क्या है? From this meeting to the next meeting, हम केस का फाइल करेंगे. After, no, suppose next meeting में आप ये चीजें लेके आइए, ये डॉक्यूमेंट मैं देखता हूँ,
देखती हूँ, उसके बाद में फिर हम इतने दिन लगाएंगे, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमारा केस कितना वो है, कहाँ पे केस फाइल होगा, दिल्ली में होगा कि बॉम्बे में होगा, तो मैट्रिमोनियल मैटर है तो वो पता करना कि शादी कहाँ परफॉर्म हुई थी। ऑल दिस आर इम्पोर्टेंट, लास्ट इकट्ठे कहाँ रहे थे, बिकॉज देयर आर जुरिस्डिक्शन। इसमें जो सारे सवाल जो हम अलग अलग सेक्शन में पढ़ते रहे ना, एक हमने सीआरपीसी में पढ़ा, फिर हमने सीपीसी में पढ़ा, फिर हमने हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ा। वी हैव टू ब्रिंग ऑल दोज नॉलेज टुगेदर। केस तो बनता है, मगर कौन से कोर्ट में फाइल होगा? रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल में फाइल होगा कि कंज्यूमर कोर्ट में फाइल होगा कि नॉर्मल मैजिस्ट्रेट के पास, सिविल जज के पास जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगा? These are all questions you have to think about. So you have to brush up all your CRPC, CPC and other special legislations and look at the jurisdictional clauses. कौन सा अगर बिजनेस का केस है तो केस दिल्ली में फाइल होगा कि बाहर फाइल होगा, कहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन है जरिए। ऑल दीज क्वेश्चंस हैव टू बी ट्रैप्ड एंड तो हमारे सब एज अ लॉयर योर जॉब इज नॉट ओनली तुम्हारे को लीगल क्लेम है कि नहीं है, लीगल क्लेम तो है, मगर ये फाइल कहाँ होगा, इसमें कोर्ट फीस लगेगी कि नहीं लगेगी। तो जो आपने बहुत सारे सेपरेट लेजिस्लेशंस पढ़े थे ना, ये प्रैक्टिस में सब इकट्ठे आ जाएंगे। और जो अगर कोर्ट फीस लगनी तो कितनी लगनी है, एड वलोरम लगनी है कि वो वैल्यू पे लगनी है, स्टैंडर्ड फीस है तो वो आपको लिमिटेशन का पीरियड तो नहीं, लैप्स तो नहीं हो गया कि आपका डेट का था तो आपने 3 साल से तो पैसा मांगा ही नहीं वापस, तो आपका तो लिमिटेशन लग गई। So you have to now bring all your knowledge of different legislations together to determine कि अब आपके कॉस्ट में, ये तो फीस मेरी है, ये कोर्ट की कॉस्ट लगेगी। सिविल मैटर्स हैं तो किन प्रॉपर्टी मैटर्स हैं, प्रॉपर्टी डिवीजन का केस है, प्रॉपर्टी का मामला है तो उसमें कितनी ड्यूटी लगेगी, कोर्ट फीस कितनी लगेगी। स्टैम्प पेपर फिर आपको ये क्लाइंट से बात नहीं होती है, मगर आपको पता नहीं स्टैम्प पेपर कैसे लगाया जाता है, कौन से व्हाट आर, ये जो प्लेंट बनेगा ये स्टैम्प पेपर में बनेगा कि बिना स्टैम्प पेपर के बनेगा, किसमें एफिडेविट लगेगा, किसमें एफिडेविट नहीं लगेगा। These are all the things which as a lawyer you will have to be in grips with. This is not all part of your just the client interview. Client interview तो उतना तक काफी है कि next meeting, अभी एग्जाम के लिए कि next meeting में क्या करना है, that's about what you will require now. But when you become actual lawyers, you will have to bring, synthesize the knowledge of all different legislations, especially court fees act, जो minor acts है ना आपके, अभी आप पढ़ चुके कि नहीं पढ़ा अभी minor acts next semester में? So remember that will be a very important paper for you to know. उसमें कोर्ट फीस होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, और आई थिंक लिमिटेशन है। सो दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट। टाइम बार हो जाता है, अगर आपने 1 साल से ज्यादा तक अपना डेट रिक्लेम नहीं किया है तो वो टाइम बार्ड है, आप लीगली कुछ नहीं कर सकते उसमें। अगर आपने रिमाइंडर देते रहे हो तो ठीक है, पर अगर आपने रिमाइंडर नहीं दिया तो उसका गुडविल है, वो दे ना दे। लेना इज लीगल, but you cannot file a case for that. So these are the other things you will have to then become aware of. So, okay. The rest of the thing you will look at yourself. I'm not going to spend more time. So you can see that how good this PPT has been. I've sent this to you for you to look at it. If you have any questions, some part of the PPT of any slide is not clear to you, you can ask me in the next class. I'll stop sharing this. Now it is time for us to stop sharing. Okay. It is not running on this page. Why it is not running? Oh, today we have a very large number of students, 74. I'm taking the attendance. So, okay, now have some people made up their mind to become a lawyer and client to practice these various stages? You can always pick up one small stage and then somebody else can replace the lawyer. The client can remain the same. Or if the client also want to change and follow up the same story, we can do that.
We have got only 5 people on the video, now 6. Without videos, we cannot have the volunteers. Only those people can volunteer who have the capability on their systems to be on the video. तो 4 लोग और वे चुस्त. So volunteer, हाथ खड़ा करो, मुझे दिख रहे हैं जो लोग के वीडियोस ऑन है. विवेक ने एक ने हाथ खड़ा किया, देख लो क्लास के बाहर का है, तुम्हारा नंबर ले जाएगा ये. विषय हम आउटसाइडर को तभी मौका देंगे जब हमारे अपने इनसाइडर नहीं तैयार होंगे. तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में तो विवेक का वो बनता है. पर अभी मैंने मनीष और पवन दोनों मेरी क्लास में बी सेक्शन में. दोनों मनीष आप बी सेक्शन में. हाँ, तो ये दोनों तो सेक्शन बी के हैं. विवेक विल गिव यू अ सेकंड चांस. फर्स्ट विल फोकस ऑन देम. तो कौन क्लाइंट है, कौन लॉयर बनना चाहता है? पवन की आवाज नहीं आ रही. आपने अनम्यूट तो क्या है पर आवाज नहीं आ रही. आपके सिस्टम में कुछ आवाज भी आ रही है ज्यादा. मनीष आप भी अनम्यूट करोगे तो पता लगेगा कि आप क्या बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो. पवन की आवाज नहीं आ रही. दोनों में से किसी की नहीं आई अभी आवाज. हाँ मनीष, तो आपने लॉयर बनना है कि क्लाइंट बनना है? मैम लॉयर. लॉयर. तो पवन को तो फिर नेसेसरी क्लाइंट बनना पड़ेगा. तो पवन, हैव यू थॉट ऑफ अ प्रॉब्लम? आपकी आवाज नहीं आ रही. पवन की आवाज नहीं आ रही है. नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही. So do we have another volunteer for paying the client from section B? Count of 5. If we do not find a volunteer, I'll ask Vivek to then take over. 5, 4. Yes, ma'am, I would like to volunteer. Perfect. Manan, you are Yes, the ma'am. client. Have you thought of a problem? Yes, ma'am. Ma'am, Chalo. like it was not there in our case, but it is like a superficial That's problem. okay. We'll see. out We'll of my see. mind. We'll see. Don't. हाँ, अभी तो Okay. reveal मत करो. We'll just say because we are wanting to see जो हमने अभी stages देखी हैं, how well we are हाँ. able to follow that. So Manish, Yes, ma'am. unmute yourself. हेलो. Hello. पवन भी आ गए तो वापस. पवन की आवाज भी आ गई. Pavana, we have replaced for the time being Hello. Manan. So we'll wait for you we'll give you another we'll do two simulation. We'll Sure, madam, take sure. you up again. So Manish, start. Manish and Manan start. Manish, Hello. unmute yourself. Manish, unmute yourself. हाँ जी. हाँ जी, मनीष जी का चैम्बर है. हाँ जी. हाँ जी. एडवोकेट मनीष जी से मिलना था मेरे को. यस, मैं ही हूँ एडवोकेट मनीष. अच्छा सर, वो आपका रेफरेंस दिया था. मेरे एक दोस्त है, उसने आपका रेफरेंस दिया था. क्या नाम है उनका? उनका हिमांशु. वो कह रहे थे आपने उनका पहले भी Okay. केस, मतलब आप उनके पहले भी वकील रह चुके हैं, तो आपने उनका कोई पेंशन का केस हाँ, लड़ा मैंने था उनके. हाँ जी. ओके. तो सर मैंने उनके 2 उन्हीं ने- केसेस लड़े थे, एक प्रॉपर्टी. हाँ जी सर. ओके, बताइए, आप बताइए. तो सर मेरे को भी आपसे थोड़ी लीगल एडवाइस की नीड थी, तो अगर आपके पास टाइम हो तो मतलब हम डिस्कस कर सकते हैं. हाँ जी, बिल्कुल, बताइए, क्या लीगल एडवाइस चाहिए आपको? सर तो मेरा एक लीगल केस था. उसमें मैंने एक व्यक्ति के खिलाफ
मतलब जो मेरा पड़ोसी है, मैंने उसके खिलाफ 2013 में एक एफआईआर रजिस्टर कराई थी। ओके। तो सर वो एफआईआर इसलिए थी कि वो उसने मेरे घर का सामान चोरी किया था। तो सर वो 2013 में एफआईआर रजिस्टर हुई थी रोहिणी पुलिस थाने में, दिल्ली में। ठीक है। और सर उसके बाद फिर सर पुलिस वालों ने मेरे को बुला के जब मैंने एफआईआर रजिस्टर कराई, तो उसके बाद उनने बोला कि उसके ऊपर कार्रवाई होगी। फिर सर वो उनने अपनी एफआईआर वगैरह की सब इन्वेस्टिगेशन वगैरह करके उनने शायद कोर्ट में जमा कर दिया था, जिसे एफआईआर कहते हैं, पुलिस चार्जशीट वगैरह जमा कर दी थी। लेकिन उसके बाद सर उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। ओके, तो मैटर अभी कोर्ट में चल रहा है वो? हाँ सर, वो मैटर कोर्ट में चल रहा है, लेकिन सर उसको उस मैटर को करीब सर 7-8 साल हो गए हैं। और जब मैं जैसे पुलिस स्टेशन जाता हूँ कभी कभी पूछने के लिए कि मैटर में क्या अपडेट है, कहाँ पे पहुंचा है मेरा केस, और जो प्रॉपर्टी मेरी चोरी हुई थी वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन उनको दिया था, पुलिस में एफआईआर में लिखा हुआ है। तो वो पुलिस वालों की तरफ से सर कोई वो नहीं मिलता है, सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता है। ओके। तो सर तो आपने अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर से बात करने की कोशिश? सर उनका सर हाँ बात हुई थी मेरी 1-2 बार, जो सरकारी वकील मिले हैं। तो उनका बिहेवियर काफी कैजुअल सा लगा मेरे को। कहते कि कभी कभी तो वो कहते कि हमारे पास और भी इम्पोर्टेंट काम है, और कभी सर जैसे उनके ऑफिस जाओ तो वो ऐसे घंटों वेट कर आते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स करने वाला नहीं होता है। और सर यही सेम हाल पुलिस स्टेशन वालों का है। पुलिस वाले कहते हैं कि हमारे पास यहाँ रोज मर्डर डकैती के केस आते हैं, तो हम आपका केस कैसे इन्वेस्टिगेट करें। और सर 1-2 बार कोर्ट में नहीं, अगर पुलिस ने... हाँ जी। ओके, बताइए आगे। और सर 1-2 बार ऐसे मेरे को कोर्ट में भी बुलाया गया है, जज के सामने। तो उनने भी मेरे से पूछा कि ये आपका केस है, और एज एन विटनेस बुलाए थे। 1-2 बार मेरी गवाही भी हुई है उसमें, लेकिन उससे ज्यादा सर आज तक कुछ नहीं हुआ। मिस्टर मनन, आपने 2013 में करवाई थी अपनी रिपोर्ट दर्ज? यस मैम। आपके पास कॉपी है आपकी रिपोर्ट की? मैम कॉपी तो नहीं है, लेकिन आई हैव द एफआईआर नंबर। नहीं, एफआईआर नंबर तो आपके, अगर हमने कंप्लेंट लिखाई है तो वो आपकी तो कॉपी देते ही देते हैं, तो आपके पास कॉपी होनी चाहिए उसकी। आप देखिए पुराने कागजों में आपकी कॉपी होगी। उसके बाद में जब आपने रिपोर्ट लिखाई 2013 में, तो आपके फिर प्रॉपर्टी रिकवर हो गई थी? पुलिस ने आपकी प्रॉपर्टी मिल गई? नो मैम, नहीं मैम। तो उन्होंने फिर केस कैसे आपका कोर्ट में कैसे पहुंच गया केस? वो कह रहे थे मैम कि हमारी इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने बोला कि हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना मनन, तो फिर कोर्ट में केस नहीं हो सकता। कोर्ट में तो केस तभी होगा जब पूरी उनकी जो उनकी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद ही वहाँ फाइल होता है। तो आप मुझे बताओ कि आप कहते आप कोर्ट गए थे? हाँ जी मैम। तो कोर्ट में आपसे कौन से कोर्ट गए थे आप? मैम रोहिणी कोर्ट। रोहिणी में तो बहुत सारे कोर्ट है ना, तो किसके कोर्ट में पेश हुई थी आप? मैम जज का नाम तो याद नहीं है मेरे को, मैम काफी पहले, 1-2 साल पहले की बात है ये। तो वहाँ कोर्ट में क्या हुआ था? कोर्ट में क्या हुआ था आपके साथ? मैम कुछ नहीं मैम, पहले मैं गया तो ऐसे जब मेरी बारी आई तो केस चालू हुआ था। तो फिर जो मेरा वो जो सरकारी वकील है, उसने मेरे को बोला था कि आप जज के सामने जब मैं आपको बुलाऊंगा तब आ जाइएगा। तो फिर जज ने मेरे से ये पूछा कि आपका ऐसा ऐसा केस है और आपका सामान चोरी हुआ था। तो फिर बस मैम मोस्ट ऑफ वो अटेंडेंस थी मेरी। एक जज ने पूछा कि आपका सामान है, आपने एफआईआर कराई थी। तो मगर इस बात में तो होता ही नहीं, इस बात में तो कोर्ट बुलाता ही नहीं आपको पूछने कि आपने एफआईआर कराई थी कि नहीं कराई थी। कोर्ट में तो आपको सिर्फ बुलाया जा सकता है जब आपकी गवाही हो। आपकी गवाही तभी होगी जब पुलिस ने प्रॉपर्टी रिकवर की हो। तो आप कुछ ना कुछ तो बता नहीं रहे हो ठीक से। मैम एक बार ठीक से बताओ क्या हुआ था 2013 में, किस बात की रिपोर्ट लिखाई थी? कि मैम मेरे घर से मेरा सामान चोरी हुआ था। मैं घर लॉक था। आपको कैसे पता कि आपके पड़ोसी ने चोरी किया था? मैम वो सीसीटीवी में है रिकॉर्डेड। 2012 में सीसीटीवी कैमरे किसने लगा रखा था? मैम वो था मैम पुश्तैनी घर था, तो इसीलिए वो पहले से लगा हुआ था। आपका पर्सनल लगाया हुआ था सीसीटीवी कैमरा? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम।
तो उसके बाद में पुलिस ने उसकी वो ली थी, हाँ मैम, उसकी रिकॉर्डिंग मांगी थी मेरे से मैम। सीडी मांगी थी। हाँ जी मैम, वो मैंने उनको दे दी थी। वो जब हाँ मैंने उनको एफआईआर कराई थी, तो उसके मैम करीब मतलब उसके कुछ समय में फिर वो आए थे एक बार घर में। नहीं, तो तो वो उसके सर, बाद में क्या, नहीं नहीं, उसके बाद में बताओ, सपोज उन्होंने देखा दिया, हाँ आपने बोला सीसीटीवी कैमरे में हुआ कि वो हमारे घर से सामान लेके गया, हाँ फिर जी मैम। सामान क्यों नहीं मिला, उसने क्या बेच दिया था सारा सामान? मैम वो आज तक मैम पता ही नहीं चला, मतलब पता ही नहीं है कुछ कि क्या हो रहा है उसमें। हाँ तो मगर फिर ये कैसे, क्यों, जब जब अच्छा के पास उसकी कॉपी है, चालान की कॉपी जो उन्होंने कोर्ट में जो पूरा कागज पेश किए, उसकी नहीं कॉपी मैम, है? उसकी नहीं दी गई, नहीं मैम। उसकी कॉपी भी नहीं है। नहीं मैम। और आप कह मैम रहे थे एफआईआर की कि कॉपी होगी मेरे पास, मतलब मैं एक बार आपको एक बार कंफर्म करके बता दूंगा। शायद हम्म। मेरे पास मतलब एफआईआर नंबर तो पुलिस वालों ने बताया था, और अच्छा, इनने कुछ आपके भी पास समन आया था, कोर्ट से समन आया था आपके पास नहीं मैम। आने के लिए? मेरे मेरे को इसने, जो हमारा सरकारी वकील है, वो उनने हाँ बोला था कि आपको हमारी ऐसी ऐसी डेट लगी है कोर्ट में, तो हाँ। आपको इतने बजे, मतलब जैसे 10 बजे आपको कोर्ट में आना होगा। अभी मैम कोर्ट से कोई कागज नहीं आया है मेरे उसके लिए। ऐसे कभी हो नहीं सकता है कि आपके पास कोर्ट का कागज ना जाए और सरकारी वकील आपको कहे, थोड़ा कुछ अजीब सा ही बात चल रही है। तो आप हाँ ऐसा जी करो, मैम। जो जो आपके पास कागज है ना इससे रिलेटेड, हाँ जी, हाँ जी। वो सब आप लेकर के आओ अगली बारी। ठीक है। और पूरी तरह से याद करो कि जब कितनी दफा कोर्ट में गए हो, हम्म। उन बारी में हर बारी जाने में कोर्ट में क्या हुआ है, आपको सरकारी वकील ने पूछा कि आपको दूसरी साइड के वकील ने पूछा कुछ, तो ये सब चीजें याद करके लिख करके डेट वाइज अपनी ठीक है पूरी मैम। रिपोर्ट बना के लाओ। और जितने ठीक है मैम। कागज है इस केस से रिलेटेड, वो सब भी लेके आना। ठीक है मैम। तो आप कब तक ला सकते हो सब लिख करके, और कागज लेकर के कब तक आ सकते हो? मैम 2 दिन के बाद आप जब बताएं मैम, 2 दिन के बाद। तो ठीक है, मुझे ना 2 दिन के बाद में फोन करना, तो मैं ठीक है मैम। डायरी देख के अपना टाइम बता दूंगी कि आपने कितने बजे आना है, तब हाँ आप जी। अपने सारे कागज लेके आ जाना। ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ जी तो मैम। चलो फिर, हाँ परसों बात करेंगे। और ठीक ठीक है से मैम। बताओ, पूरी पूरी बात है, क्योंकि जो आप बता रहे हो वो हाँ जी। नॉर्मल कोर्स में ऐसा नहीं होता है। ठीक है या मैम। तो आपको जब कितने साल हो गए तो उसके बाद जब आप भूल गए हो, हाँ जी, हाँ तो जी। आप ठीक से, हाँ ठीक से याद करके ठीक से सारे कागज देख करके, कोई फाइल वाइल बना रखी होगी ना इसके कागज हाँ जी, रिलेटेड, हाँ जी। वो हाँ हाँ सब हाँ लेकर मैम। के आओ, वो सब लेके आओ, ठीक है। फिर देख करके फिर बात करें। ठीक है मैम। चलो ठीक है, फिर ठीक परसों है। मिलेंगे, फोन कर लेना। हाँ मैम, मैं आपको फोन कर लूंगा मैम आने से हाँ पहले। ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ जी। चलो नमस्ते। नमस्ते। Now in this interaction, did you notice the probing I did? What kind of question did I ask? कहाँ तो सप्लाई थे क्वेश्चन, कहाँ तो हमारे लीडिंग क्वेश्चंस थे, कहाँ पे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस थे. We were wanting to build up the details. So Manish did a good job of the initiating, मगर वो थोड़ा सा और भी बात कर सकते थे. जब एक सेंटेंस के बाद में कहा ठीक है आप बताइए फिर क्या बात है, तो ठीक है, दैट ऑल्सो इट्स ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट एज वेल. पर अगर आपने थोड़ा सा क्लाइंट को ज्यादा कंफर्ट में करना है, वो आप एक दो सेंटेंसेस और बोले जा सकते थे. और जो हमने कहा था क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में बताएंगे, कि जो आप बताओगे, आपको मालूम है ना कि जो भी आप लॉयर को बताते हो वो लॉयर किसी को बताते नहीं है, वो सेंटेंस कहा जा सकता था. अगर आप बेझिझक पूरी बात बताओ क्या बात है, वो कहा जा सकता था. बट व्हाट ही डिड गुड वाज कि जब जब उन्होंने क्लाइंट ने बताना शुरू किया, तो उन्होंने इंटरप्ट में कहा कि ठीक है, हाँ चलो, ही वाज नॉडिंग, ही वाज गिविंग टाइम एंड स्पेस to the client to give his story, which was a good part of the manner in which the lawyer dealt with it. तो आपको धीरे धीरे यही प्रैक्टिस करनी है कि आपको पूरी पहले तो आपके जर्नल सेंस बताना है कि जो जो स्टोरी बता रहे हैं वो स्टोरी बन सकती है. अभी कोर्ट में गए हैं, कह रहे हैं, और कोर्ट में बिना कागज से पहुंच गए, वहां पे अपेयरेंस भी हो गई, वो तो नहीं हो सकता ना. वो ऐसा लॉयर में पता है कि वो नहीं होता, तो समन आएगा तभी कोर्ट में जा सकता है आदमी, और जाएगा तो उसे एग्जामिनेशन इन चीफ होगी, फिर क्रॉस होएगा. एज ए विक्टिम, दिस इज द ओनली रोल ही हैज. इनके पास कॉपी ना होना उसकी चालान की तो सही है, इनको तो मिलेगी नहीं वो कॉपी, पर इनके पास एफआईआर की कॉपी तो होगी ही होगी. एफआईआर नंबर सिर्फ नहीं होगा. तो ये जो नॉलेज हमारी है कि जब हम एक रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो उस रिपोर्ट की कॉपी मिलना हमारा अधिकार है. कौन सी तारीख को, फिर अगर सपोज कहता कि नहीं मेरे पास तो नहीं है, तो फिर हमें वो निकलवानी पड़ेगी कोर्ट रूम से, वहां से जाकर के पुलिस स्टेशन पे. तो अच्छा फिर तारीख बताओ, कौन सी तारीख को आपके यहाँ चोरी हुई थी, वो डिटेल बताओ.
तो वी हैव टू वर्क ऑन द डिटेल्स टू असरटेन कि जो क्लाइंट बता रहा है वो ठीक से बता भी रही है, अपने अपने हिसाब से कुछ कुछ भी बता रहे हैं हमें, पर ये हमारे लीगल सिस्टम में फिट नहीं होती कहानी, तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो चाहे इनकी मेमोरी में गड़बड़ है या ये कुछ और बात करने आए थे, ऐसी अभी ना बात तो कुछ और करने आए थे, फिर मन बदल के ये ऐसी फेक सी स्टोरी बता दी, जब आया तो कुछ तो बात करनी है। तो हमें अभी सर्टन नहीं हो रहा बिल्कुल भी कि मनन हमसे क्या बात करने आए थे, क्या ये असेस कर दे कि मतलब मुझसे ये बात जो असल में करने आए हैं वो कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो मेकिंग एन असेसमेंट कि मुझे कुछ आता भी है कि नहीं आता है। मैं ऐसे झूठी मोटी स्टोरी बना रहा हूँ, वैसे तो लॉयर मुझे उसमें बताता है कि हाँ हाँ केस है, तो हमें नहीं मालूम इसका मोटिवेशन क्या है इस क्लाइंट का। पर ये क्लियर है कि जो वो स्टोरी बता रहे हैं वो लॉजिकल सी स्टोरी नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो आप उस हिसाब से उसको हैंडल करोगे। Anybody else who want to be doing the second round? कोई मोटिवेट हुआ? Yes, कौन? गिरीश, एक और चाहिए, one more person. Ma'am, I will volunteer for client. शिव गुप्ता इज क्लाइंट। हमें एक और असिस्टेंट चाहिए जो गिरीश का को पार्टनर है, दोनों मिल के करेंगे। क्या गिरीश ने कुछ नहीं पूछा, आपको लगता है पूछा? जैसे मैंने ज्वाइन किया ना मनीष को, वैसे आप ma'am. भी ज्वाइन कर सकते हो। I will for client, ma'am. I will be for client. अब क्लाइंट तो मिल गया हमारा, शिव ने वॉलंटियर किया है क्लाइंट। हमें एक और लॉयर चाहिए जो इसके साथ में फर्म में सेम जोड़ी है, इंग्लिश के साथ में एक और लॉयर चाहिए, दोनों मिल के कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। मनीष दोबारा से, तो मनीष आकर म्यूट करो, आप कर चुके हो, अब आप दोबारा से नहीं करोगे। हाँ पवन, पवन करोगे? पवन ने पहले बोले। Yes, madam. हाँ चलो पवन और गिरीश मिलके लॉयर का रोल करेंगे और शिव हमारे वो बनेंगे क्लाइंट। चलिए शुरू करिए। सबके अनम्यूट हो गए? पवन आपका अनम्यूट नहीं है, आप अभी भी म्यूट पे हो। Hello. शुरू करें? Yes, sir. हाँ जी सर, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, मेरे को एक केस डिस्कस करना है आपसे। आइए आइए बैठिए, अंदर चलिए। जी जी शुक्रिया। सर ऐसा है कि मेरे बड़े ब्रदर का केस है, अभी क्या क्या उनका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था। अरे सुनिए। नहीं थैंक यू वेरी मच। अरे कुछ तो चाय मंगा देते रुकिए। नहीं सर थैंक यू वेरी मच। अरे दूर से आए सर ऐसा है एक हाँ जी क्या क्या कह रहे हैं? थोड़ा दूर से चल के आएंगे, थोड़ा पानी पीजिए आप पहले। नहीं सर आप ले लीजिए मेरी तरफ से। ओके। केस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हेलो, आपकी आवाज आ रही है मेरे को? तो नहीं आप? हाँ 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 बोलिए। ठीक है। मैं ये कह रहा था, एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, इसमें जो सेक्शंस लगे वो 498A और 406 और 3/4 DP एक्ट लगा इसमें। ठीक है, इसमें चार्जशीट जो है वो दाखिल हो चुकी है और ये जो है ये उत्तर प्रदेश का केस है और जो लड़का है वो दिल्ली का रहने वाला है, लड़की जो है वो यूपी की रहने वाली है। और इसमें चक्कर यह है कि लड़की ने एक्स पार्टी डिवोर्स ले लिया है। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरे को मेरी? हाँ 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 बोलिए बोलिए। हाँ जी ठीक। तो इसमें क्या है कि लड़की ने तो एक्स पार्टी डिवोर्स ले लिया है, जो आईओ था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था। एक सेकंड होल्ड कीजिए प्लीज। अब देखिए उन्होंने शुरू किया था कि 498 का केस है, अचानक से चले गए हैं डाइवोर्स पे। तो दिस इज हाउ क्लाइंट्स यूजुअली टेल स्टोरीज, कभी एक बात बता देंगे, कभी कुछ और बताएंगे, तो कुछ कंफ्यूजन तो चल रहा है ऑलरेडी, इतना वी कैन मेक आउट इन दिस स्टोरी।
पहले उसने बोला मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, फिर बोले 498 है, 306 है, लोगों ने कौन से चेक करेंगे, डीपी एक्ट बता दिया। तो फिर डाइवोर्स भी ले चुके हैं। तो इनके लिए बहुत सारी हमें इंफॉर्मेशन सिस्टमैटिक तरीके से गैदर करनी पड़ेगी। एज अ लॉयर बी अवेयर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज मिसिंग और इज कॉन्ट्राडिक्टिंग, क्लैरिटी चाहिए होगी। कंटिन्यू करिए। हाँ जी सर, तो एक्चुअली जो केस है वो 7 इयर्स पहले का है। जो मैरिज जो है वो 7 साल पहले हुई, और जो लड़की थी वो 1.5 महीने रुकी। ठीक है, उसके बाद उसने ये तीनों सेक्शन जो मैंने आपको बताए वो डाल दिए फैमिली पे, ठीक है, और लड़के पे। उसके बाद क्या हुआ कि जो चार्जशीट थी उस टाइम पे तो फैमिली ने मतलब बेल ले ली। क्या चीज? 498 बताया। 498A सेक्शन आप फिर से बताइए। हाँ, 498A 406 ओके and 3/4 DP Act. DP, D for Delhi, P for Police Act. डीपी एक्ट। हाँ, DP Act. द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। हाँ, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट में। हाँ ठीक है, फिर आगे। ठीक है, तो ये 7 इयर्स बैक का केस है। तो उसके बाद क्या है कि हम लोगों ने जो है बेल ले ली, यूपी से ही बेल ले ली फैमिली ने, सारी फैमिली ने। उसके बाद क्या हुआ, 7 इयर्स बाद जो है आईओ ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी 7 इयर्स बैक, मतलब बाद में, सॉरी। तो उसके बाद क्या है कि हम लोग ने बेल तो ले ही ली थी, लेकिन वहाँ क्या हुआ, थोड़ा सा आपको बताइए कोर्ट्स का काम कैसा है कि थोड़ा सा करप्शन है, थोड़ा सा यूपी जैसी जगह पे तो बहुत ज्यादा करप्शन है, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो। तो वहां पे क्या हुआ कि इन लोगों की तरफ से, मतलब कोर्ट की तरफ से हमको कोई भी संबंध नहीं आया। सुनिए ना ही जी बोलिए। आपकी आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। कोई भी जगह ले लो आप, मेरठ, बरेली, बरेली ले लो, बरेली ले लो का क्या मतलब है? मैं तो एग्जांपल ले रहा हूँ इसलिए। एग्जाम्पल नहीं, आप रियल क्लाइंट हो। ठीक है, आप ठीक है, एग्जाम्पल नहीं दे रहे हो। ठीक है मैम, ठीक है आप मैम, नो रियल प्रॉब्लम। कहानी बरेली, बता रहे हो। बरेली, ठीक है मैम, बरेली। बताइए। हाँ, तो एक्चुअली वहाँ पे करप्शन ज्यादा है, तो वहाँ से एक्चुअली क्या हुआ कि हमें कोई भी मतलब संबंध नहीं आया, ठीक है, और ना ही बिलेबल वारंट आया, BW जिसको कहते हैं। उसके बाद सीधा NBW आ गए, नॉन बिलेबल वारंट आ गए। तो इस केस में क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? तो ये नॉन बिलेबल, आप दोनों का वीडियो कट रहा है बहुत ज्यादा। वीडियो, ये नॉन बिलेबल वारंट आपको कब रिसीव हुआ? एक एक करके बोलिए तो बहुत अच्छा रहेगा। हेलो, हाँ जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि ये नॉन बिलेबल वारंट आपको कब रिसीव हुआ? ये मैंने आपको बताया ना, 7 इयर्स आफ्टर, जब चार्जशीट उसने दाखिल कर दी, उसी के बाद वहां से हमें संबंध नहीं आया और ना ही बिलेबल वारंट आया, तो सीधा ही नॉन बिलेबल वारंट आ गया। जबकि लीगल प्रोसीजर के हिसाब से तो हमको संबंध भी आना चाहिए था और बिलेबल वारंट भी आना चाहिए था, लेकिन वो किसी तरीके से रफा दफा हुआ। हाँ, तो लॉयर साहब, वकील साहब ये पूछ रहे हैं कि आपको ये जो नॉन अवेलेबल वारंट आया, ये कब आया? मैम 2018। 2018 से तो कुछ नहीं हुआ ना आज तक। नहीं मैम, पुलिस वाले आए थे ना नॉन अवेलेबल वारंट लेके, तो वो अरेस्ट ही होना हुआ ना तरीके से। 2018 में आए थे ना। जी। तब तो 20 चल रहा है, सितंबर आ गया, तब से आज तक कुछ नहीं हुआ। मैम वो आए थे ना, अरेस्ट करने आए थे। वो तो 2 साल पहले आए थे, तो तब से अब तक क्या हुआ? अब आप आज क्यों आए हो मेरे पास? मैम एक्चुअली मैं वही तो इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि उसके बाद क्या प्रोसीजर है, ये लोग बताएंगे ना। उसके बाद में थोड़ा सा जो बाद में जो चीजें मैंने, जब 2 साल कुछ हुआ ही नहीं तो कोई प्रोसीजर नहीं है, आगे भी कुछ नहीं हो रहा, 2 साल से कुछ नहीं हुआ। नहीं, उसमें क्या है मैम, पहले जहाँ तक मुझे नॉलेज है मैम, वहाँ तक क्या है कि उत्तर प्रदेश में पहले एंटीसिपेटरी बेल नहीं हुआ करती थी। जो मेरे ख्याल से पता नहीं कौन सी गवर्नमेंट थी, उसने एंटीसिपेटरी बेल जो है वहाँ पे बिल्कुल ही वो कर दी थी,
कैंसिल कर सिर्फ दीजिए। आपको फैक्ट्स देखो ना, फैक्ट्स में जो आप बता जी रहे हो। हाँ जी बताइए, मैम, तो जी 2 साल पहले, पहले तो आपने बोला कि 7 साल पहले वो मुकदमा दायर हुआ, जी वो जी तो जी। चलो हो सकता है कि मुझे चल रहा ऐसा लग होगा रहा है अभी। कि आप हमारी नॉलेज चेक करने आए हो। क्या है? हम्म? हाँ, नॉलेज नॉलेज तो सर मैं चेक करूंगा ही ना, अगर वकील के पास अच्छा, आऊंगा तो नॉलेज तो सबसे पहले चेक करूंगा ही करूंगा। नहीं नहीं, वो नहीं बात तो ठीक सही है है, वो तो कोई गलत पर चीज अगर नहीं आपने है। कहा ना कि केस है आपका कोई, केस केस तो तो फिर है आपका ही कोई है है, ही नहीं, जब 2 साल केस तक तो कुछ होता सही ही हुआ ही है। नहीं। परवेज आलम पूछ रहे हैं कि चार्जशीट 7 साल बाद फाइल हुई है। हाँ मैंने बताया ना मैम, चार्जशीट जो है वो आई ने 7 years आफ्टर फाइल करी। आफ्टर का क्या मतलब है, हिंदी में बता दो पूरा। 7 साल बाद, हाँ जी, 7 साल बाद मैम। 7 साल पहले जो बीवी ने 7 साल पहले इंफॉर्मेशन दी थी, वो फाइल अब हुई है। हाँ मैम। तो फिर 2 साल पहले वारंट कैसे आ गए? मैं 7 साल जब पहले एफआईआर अब फाइल हुई है। नहीं नहीं, ये टू योर फैक्ट्स, फैक्ट्स बिल्कुल सही नहीं बता रहे हो। ऐसे फैक्ट फैक्ट्स है मैम, फैक्ट है। पे लॉयर क्या करेगा? ऐसे फैक्ट्स पे बेचारा लॉयर कैन क्या इवन शो करेगा? यू मैम, आई कैन अभी इवन शो आप यू नहीं बता मैम। रहे थे नहीं कि नहीं, उत्तर प्रदेश में मैम, 2013 में। सुनो उत्तर सुनो, सुनिए प्रदेश सुनिए, में बिलीव इट और अब नॉट इन्होंने ये बता मैम, दिया, ये फैक्ट्स बता दिए। अब एडवाइस क्या दोगे आप इनको, ये बताओ। एज अ लॉयर व्हाट एडवाइस विल यू गिव हिम? मैडम एडवाइस तो इसमें यही है कि जब 2018 में मैडम एनबीडब्ल्यू को आया नहीं देनी, इनको अभी तक, मैडम को नहीं देनी, मैडम को नहीं देनी, शिव को देनी हाँ एडवाइस। हाँ, शिव को ही कि जब 2018 में एनबीडब्ल्यू आया और अभी तक कुछ एक्शन ही नहीं हुआ, तो अभी आपको फिर मेरे ख्याल से कोई एडवाइस की जरूरत है नहीं। जब कोई एक्शन हो पुलिस की तरफ से, तब आप बिल्कुल हमसे कंसल्ट करिएगा। नहीं 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 सर, आप गलत बोल रहे हो। जब भी एनबीडब्ल्यू आता है तो पुलिस अरेस्ट करने ही आती है। आप उसको किसी भी तरीके से अगर रोक लेते हो, उसके बाद तो आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के लिए जाना होगा ना, क्योंकि एनबीडब्ल्यू कहाँ से आते हैं? एनबीडब्ल्यू जो आते हैं वो जज की तरफ से आते हैं। वी आर नॉट इनटू एन आर्गुमेंट विद द लॉयर। अगर मैं होती तो नहीं मैं तो मैम, आई एम नॉट कहती ऐसा करो, आप ऐसा करो, कल ना सारे आर्गुमेंट। कागज लेके आ जाओ। हमने भी एडवाइस दे दी, ठीक है हमने मैम, ना ठीक देखा वो एनबीडब्ल्यू जो कह रहा है भी एनबीडब्ल्यू की नहीं है। अगर एनबीडब्ल्यू होता तो आज है। तक कोई एक्शन ना हुआ या हो नहीं सकता ना। तो वो तो कह रहे हैं जी जी एनबीडब्ल्यू, पर हो सकता है एनबीडब्ल्यू हो ही ना। जी जी, हो सकता है समन आया होगा, इसको किसी ने कह दिया एनबीडब्ल्यू, एनबीडब्ल्यू लेके घूम रहा है। ठीक मैम, बोला जी कल कागज ले आना, फिर देखेंगे। हाँ, ठीक है अभी जो मैम, एफआईआर की कॉपी है वो भी ले आओ। जितने ठीक है। कोर्ट से रिलेटेड कागज आज तक है 7 साल में, वो सब कागज लेके कल आओ। फिर आगे जांच करते हैं, क्योंकि जो आप कह रहे हो हमें बहुत ठीक से समझ नहीं आ रहा कि हो सकता है आपको कोई गलती लग जाए कागजों में। अगर एनबीडब्ल्यू अगर 2 साल नहीं पहले मैम, आए एक्चुअली थे तो उत्तर प्रदेश एक्शन में अभी तक ना हो, ऐसा नहीं नहीं हो मैम, सकता। मैम एक्चुअली क्या है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी चीजें होती हैं, इसीलिए मैंने आपको फैक्ट्स के ऊपर ही शिव बात करी है। गुप्ता, हाँ मुझे मैम, ये बता दो, नहीं सीधी सी जी बात जी बता दो, दैट व्हाट जी हैज गिवन राइज टू यू वांटिंग एन एडवाइस टुडे आफ्टर 2 years? मैम, कुछ ना एनबीडब्ल्यू कुछ तो हुआ होगा ना, तभी तो मैं मैम, अचानक से आ गए एनबीडब्ल्यू 2 साल बाद, तो फिर जाग जाओगे कि 2 साल से लोगों से एनबीडब्ल्यू एडवाइस ही लेते घूम रहे हो। कुछ ना कुछ हुआ एनबीडब्ल्यू की होगा ना बात कल, करें जिस ना, वजह से आज आपको लॉयर की एडवाइस चाहिए। एनबीडब्ल्यू मैम, एनबीडब्ल्यू मैं कहता हूँ आपको, एनबीडब्ल्यू नॉन एनबीडब्ल्यू बिलीवेबल 2 साल वारंट। पहले आए थे, समझ सुन ही नहीं रहे हो? खुद ही कह रहे हो ना कि एलबीडब्ल्यू 2 साल लेकिन मैम पहले आए थे। ये तो नहीं है ना मैम कि उसके मैं 2 बाद साल से बाद आज तक कुछ डिस्कस नहीं नहीं कर हुआ। सकता। तो डिस्कस करने का, लॉयर के पास खाली टाइम बैठा है, वो सब डिस्कस करेगा। नहीं नहीं मैम, कोई मैं तो वजह एडवाइस नहीं देने है आया ना। आपको। आप तो बोलोगे कि कल पुलिस वाले आ गए थे हमारे घर में, जी 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 तो 2 साल जी। पहले आया था, कल पुलिस वाले आ गए, तो आप बता दो तो समझ में आता है कि अब अर्जेंसी आ गई लॉयर मिलने की। अचानक जी से जी आपको 7 साल पुरानी बात याद आ गई, 2 साल पुराने एमबीडब्ल्यू आ गए, तो लॉयर का तो आप टाइम जी। वेस्ट कर रहे हो। नहीं नहीं मैम, वो टाइम वेस्ट की तो बात ही नहीं है, टाइम वेस्ट की तो चलो बात जी, ही नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो? आप मुझे बता दो, आप 2 साल बाद क्यों एडवाइस लेने आए हो? चलिए मैम, ठीक है, कोई नहीं मैम, अगर आपको लग रहा है कि ठीक है नहीं, मुझे तो। जवाब दे दो ना, जवाब दो कि 2 साल बाद अचानक से आप एडवाइस देने क्यों आए हो? समथिंग हैज स्पर्ड इट ना। हाँ हाँ कुछ ना कुछ तो हुआ ना, जब भी जब उसका वो, चलो भाई एक केस पड़ रहा था, वो तो एनबीडब्ल्यू निकले हुए हैं, उसकी पुलिस, मेरे भाई की अच्छी नौकरी लग गई है, तो उसको अभी उसका पुलिस इंक्वायरी होगी, जी और एनबीडब्ल्यू पेंडिंग है। समझ में आ सकता है ना, यू टू मेक अ लिंक कि व्हाट हैज ठीक गिवन है, ठीक राइज टू योर कॉज ऑफ एक्शन नाउ। तुम आज की तारीख में अचानक से मुझसे एडवाइस लेने क्यों आए हो? ठीक है मैम, अगर आप नहीं बता रहे हो तो सीधी सी बात है कि आप कुछ ना कुछ बताना नहीं चाह रहे हो। कुछ ना ठीक कुछ है तो मैम, हुआ है जो आप मुझे ठीक नहीं बताते। तो मुझे अभी एज ए लॉयर मुझे पता है इनहिबिशन है किसी बात का।
कुछ हुआ है कल या परसों में रिसेंट में जिसकी वजह से आप अचानक से मेरे पास उठ के आए हो 2 साल पुरानी एनबीडब्ल्यू के लिए। ठीक है मैम, ठीक है, अगर एनबीडब्ल्यू है तो मुझे तो कागज तो मांगने ही पड़ेंगे ना। There's ठीक only है मैम। course of action available. बिल्कुल There's बिल्कुल, a आप सही कह lawyer. रहे हैं मैम। हाँ, you अपार्ट are. फ्रॉम दिस आई वांट टू ऐड वन थिंग कि इसमें क्या है कि एक तो बीच में कोरोना वायरस आ गया, जैसा आप पूछ रहे हो कि इतना टाइम क्यों लगा, और दूसरी बात यह है मैम, जब 2018 में इन दी एंड, मतलब दिसंबर के महीने में, कोरोना 2018 वायरस दिसंबर 1.25 के साल महीने में, बाद, अगर दिसंबर 18 में भी आया तो भी 1.25 साल कोरोना वायरस बाद में आया। मैम मेरे को सुन तो लीजिए आप कि मैं किस चीज पे आना चाह रहा हूँ प्लीज। नहीं, आप इंटरव्यू के लिए तैयार ही नहीं हो, आप इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, विच इज कैन बी वेरी ट्रू। लॉयर्स, ऐसे क्लाइंट भी आ सकते हैं, so जी you जी have जी। to learn to handle these clients also, जो अपनी बेसिक फैक्ट की किधर की अनकनेक्टेड सी बातें बता देंगे। पहले बोलेंगे कि ये केस है, फिर बोलेंगे डाइवोर्स हो गया, फिर वापस आगे कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, फिर डाउरी प्रोहिबिशन का केस है, तो आपका 498 लगा है, मैम 34 लेकिन लगा है। डू नॉट माइंड, तो डू नॉट माइंड lawyers, मैम, डू the नॉट माइंड client मैम, can tell us any stories, मैम and डू we नॉट as माइंड, a बट lawyer, बीइंग अ लॉयर स्टूडेंट मैम, आई नो कि डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, बट आई एम ऑन द वीडियो कॉल राइट नाउ, सो हाउ कैन आई टेक द डॉक्यूमेंट्स, यू नो द सिनेरियो वेरी वेल। सो वीडियो कॉल पे तो मैम मैं आई रियली कैन नॉट शो एनी डॉक्यूमेंट्स ना, सो सर हम बीइंग आगे अ आपको पूरी लॉयर स्टूडेंट पीपीटी मैम। दिखा दिया, पूरी पीपीटी हम दिखा चुके हैं अभी आपको। हाउ कैन यू नॉट शो योर डॉक्यूमेंट टू अस ऑन द वीडियो कॉल? आप मैम हाउ दिखाओगे ना, कैन आई, शेयर करो उसको, स्कैन करके हमें दिखाओ। तो मैम वो चीज मेरे को प्रिपेयर करनी नहीं, पड़ेगी ना मैम, you बट are द थिंग इज, unnecessarily, you are unnecessarily arguing. That's not the point of today's मैम conversation. आई एम When नॉट, we started with the फाइन ठीक है फाइन, assumption, उन्होंने बोला कि आपको गर्मी लगी होगी, पानी पी लो। वीडियो कॉल में बोला जी ना जी उसने, so he's not treating जी it जी as a video call. So don't, जी जी don't जी जी। pay attention to what's happening. The हाँ तो मैम happening मैंने भी is that सेम we चीज are कही कि हाँ doing मैं a डॉक्यूमेंट ले आऊँ ना, simulation. मैंने We मैम are मना तो नहीं doing किया a डॉक्यूमेंट के लिए। simulation. We are doing a simulation, assuming it's a physical meeting. जी Then जी जी suddenly जी। you're bringing up the video call. वीडियो कॉल है तो फिर स्कैन करके दिखाइए डॉक्यूमेंट। No, नो don't प्रॉब्लम, mix नो up प्रॉब्लम, things. नो प्रॉब्लम इन दैट। Yes, be prepared, but as a lawyer, it's a very important lesson. So now जी what is happening between me and Shiv is happening a quarrelsome client. That there is a client who wants to justify his position and he certainly knows some law, and therefore I am in a difficult position as a lawyer to control this client. So what are the ways I can now deal with it? ठीक है शिव, ये बहुत अच्छी बात है जो आपने बताया, पर मुझे अपनी क्लैरिटी के लिए चाहिए कि आप मुझे अगली बार ही सारे कागज दिखाओ। ओनली देन आई कैन गिव यू एडवाइस। जी मैम बिल्कुल राइट। तो ठीक है, अभी आप मुझे कब तक कागज लेकर के आओगे? So can we have we're still at 5:21, one last interview. We have Vivek. Vivek, you want to be the lawyer or you want to be the client? Ma'am, whatever the other person prefer, I will take the other side. हाँ जी, I want to be a client. जो भी दूसरा, हाँ पुनीत क्या कह रहे हो? I want to be a client, ma'am. अभी तो 2 क्लाइंट हो गए, अब एक जना कौन सा लॉयर? I will कौन be सी lawyer. आवाज आई? आई एम नॉट सीइंग द वीडियो, whoever spoke. चाहत, हम चाहत। हाँ तो अपना वीडियो यस मैम। चाहत वीडियो ऑन करो। मैम थोड़ा नेटवर्क इश्यू है इसलिए वीडियो नहीं ऑन हो सकता है। Too bad, too फिर bad. आवाज कट जाएगी। नहीं, we cannot hold it because we need to see your body language, your gestures, whatever. That reminds me that look at Girish. During the interview, what was his body posture? Was he seeming that he was involved in the conversation? Puneet to tha. Nahi, Puneet nahi. Pawan was very much involved. Was Girish involved in the conversation? तो अभी जब आप लोग रिकॉर्डिंग देखोगे तो go back and look at while this conversation was happening, what was the body language which Girish was showing? Was he showing active listening and passive listening, involvement in the conversation, or was he just an observer? So who else? We've got Puneet. Anybody else?
Yes, ma'am. Deepak, video on. Yes, ma'am. हाँ, तो आप लॉयर बनेंगे? Good afternoon, ma'am. Yes, ma'am. I will try. हाँ जी, चलो बढ़िया, very good. So Deepak is the lawyer, and Vivek, you can step in as and when you think it is essential. Sure, ma'am. And Puneet is our so Puneet is our client, and Deepak and Vivek are the lawyers. Vivek, give chance to Deepak to first be the primary interviewer, Sure, and then ma'am. you can jump in. Yeah. करो, शुरू करो. मैम shall I? Yes. हाँ सर, सर मेरा नाम पुनीत चौहान. आप नहीं हैं सर? सॉरी सर, आपकी आवाज आप नहीं आ रही. सर नमस्कार सर, मेरा नाम पुनीत चौहान. आप दीपक जी बात कर रहे हैं? जी नमस्कार पुनीत जी, मैं दीपक जी बोल रहा हूँ, बोलिए. अच्छा दीपक जी, आप जारी कोर्ट में बैठते हैं क्या? जी सर, मैं 30,000 और हाई अच्छा कोर्ट दीपक दोनों. जी मेरा जी सर. जी सर, मेरे एक फ्रेंड के थ्रू आपका कांटेक्ट नंबर मिला और मेरी थोड़ी सी परेशानी है, तो आपसे मैं थोड़ा सा लीगल लेना चाह रहा हूँ. तो थोड़ी 2 मिनट मुझे आपसे बात हो सकती है अभी? जी सर बिल्कुल, मेरे पास अभी 10 मिनट हैं, आप बैठिए. पहले आप ये बताइए, पानी जी पियोगे या चाय लोगे? जी. अच्छा सुनो, देखो अब लोग कंफ्यूजन हो रहा है. थैंक यू सो ये मच. नहीं, ये फोन कॉल हो रही है, वीडियो कॉल हो रही है कि फिजिकल मीटिंग है? फिजिकल मीटिंग है मैम. वो तो कह रहा है फिजिकल कि मीटिंग, आपकी आवाज सुनाई पड़ फिजिकल रही है. मीटिंग. वो मैम वो आवाज नहीं आ रही, पुनीत तो वो फोन कॉल स्टार्टिंग. कर रहा है. पुनीत तो फोन कॉल कर रहा है, आप अच्छा फिजिकल नहीं मीटिंग कर वो. रहे हो. जी मैम. तो दोनों दोनों चलो, फिजिकल मीटिंग हो रही है. चलो अब फिजिकल दोनों लेते हैं लॉयर मैम. बैठे, दोनों लॉयर बैठे हैं आपके सामने. जी आप उनके चेम्बर में गए हो. जी जी. जी तो सर मेरी एक छोटी सी परेशानी है. 3 दिन पहले मैं आपसे बताऊं, आपको शेयर करूं? जी सर अगर बिल्कुल बोलिए. अभी आप दे सकते हैं. जी सर, परसों मैं मॉडल टाउन में रहता हूं सर. और परसों मैं अपनी जी कार से ट्रैवल कर रहा था, तो सामने में एक लेडी आ गई. एकदम सामने वो उस पे स्कूटी कर रही थी, तो अचानक से मेरे सामने में आ गई और मैंने जैसे कार का ब्रेक लगाया तो उनकी स्कूटी से थोड़ा सा टच हो गया. और सामने जी उनके सर. हस्बैंड भी थे जो पीछे बैठे हुए थे. हाँ, तो इसके ऊपर उनके हस्बैंड को उनको काफी गुस्सा आ गया, उसी को लेकर थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो गई. तो वो इशू जो सारा था वो थोड़ा सा एक माइनर से एक्सीडेंट का था, जिसको लेकर मैंने अपोलोजाइज भी किया उन लोगों को काफी. लेकिन वो आर्ग्यूमेंट बढ़ती गई, इस चक्कर में वो उसके रिजल्ट में आके उन्होंने एफआईआर लॉन्च करा दी सर. और जी एफआईआर सर. में उन्होंने मेरे ऊपर हाँ जी छेड़खानी का कुछ वो लगा वो ब्लेम. और यही मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर लॉन्च करा सर मेरे नाम से. तो अभी आज मेरे जी पास सर. आईओ की कॉल थी, उन्होंने अभी पुलिस स्टेशन में बुलाया मुझे शाम में. तो जी सर. वो सेक्शन वगैरह, हाँ, जब मैंने पता किया और मतलब अभी पता चला तो मुझे 354A की एफआईआर है सर. 354 ए की एफआईआर करा दी. जी सर. हाँ सर. तो सर अब इसमें फिर मतलब अभी आगे क्या कर मुझे? जी सर. और मैं दीपक जी के साथ ही काम कर रहा हूँ, ठीक है? तो जी आपको सर. बताया है एफआईआर लॉन्च हो चुकी है आपके नाम पे? हाँ जी सर, अभी मेरे पास कॉल आई थी सर थोड़ी देर पहले. तो आईओ ने मुझे अभी शाम में बुलाया है पुलिस स्टेशन, और उनसे मैंने जब पूछा कि क्या इशू है, मैं बताया कि ऐसे ऐसे आपके अगेंस्ट में एक एफआईआर दर्ज हुई है और ये सेक्शन है. तो मैंने उनसे ज़्यादा पूछा तो उन्होंने मुझे बताया. तो अभी मैं शाम में उन्होंने 7 बजे पुलिस स्टेशन में. तो ऐसे में सर मुझे अच्छा. चाहिए आगे. जी. और ये आपका थोड़ा सा इंसिडेंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएंगे, कहाँ पे किस टाइम पे हुई थी ये जी इंसिडेंट? जी ये परसों शाम को 5 बजे के अराउंड मॉडल टाउन सेकंड बात है सर. अच्छा. हाँ जी, मैं आज़ादपुर की तरफ से आ रहा था सर कार से. और सामने से वो लेडी मॉडल टाउन में ही मतलब ट्रैवल कर रही थी कहीं से ही. तो वो अचानक से स्कूटी लेकर के सामने में आ गई. मैंने एकदम से भी अप्लाई किया, बट वो इतना डिस्टेंस नहीं था. ब्रेक अप्लाई करने के बाद ही स्कूटी में टच हो गई मेरी कार. तो उसको लेके उनके हस्बैंड
हस्बैंड काफी हो गए, मैंने काफी देर तक उनको अपोलोजाइज भी किया, माफी भी मांगी, लेकिन उसके बावजूद भी आर्गुमेंट काफी बढ़ती गई। सो मान ही नहीं रहे थे। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि ठीक है, अब बात जब बढ़ती गई, अब मुझे बाद में पता चला, अभी आईओ का कॉल आया कि उन्होंने जाके पुलिस एफआईआर दर्ज करा दी है छेड़खानी की, जबकि जी छेड़खानी सर। जैसा तो कुछ हुआ ही नहीं था सर। सारी बस वो ओके बात छोटी सी एक एक्सीडेंट को लेकर थी, जबकि एक्सीडेंट का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने छेड़खानी का लगा के एफआईआर फॉल्स, मतलब मेरी तरफ से, मुझे तो, मैं तो आपको 100% बता रहा हूँ कि फॉल्स एफआईआर है ये। जी सर। सर मुझे क्या एक बार मैं करना चाहिए सर? थोड़ा सा फैक्ट, सर मैं बिल्कुल आपको एडवाइस दूंगा इस बारे में। उससे पहले सर मैं जी जी दो बातें जानना चाहूंगा सर आपसे। जी जी जी। सर आप मॉडल टाउन से किस तरफ जा रहे थे? आजादपुर की तरफ जा रहे थे सर या मैं यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे थे? आजादपुर से, जी जी जी, मैं मॉडल टाउन में रहता हूँ। मॉडल टाउन में मेरा अपना फ्लैट है, और मैं आजादपुर से वापस अपना सब्जी लेकर के और मॉडल टाउन वापस आ रहा था, उनकी अपने फ्लैट जी की सर तरफ जा सर। रहा था। जी। जी सर। और सर जो स्कूटी थी वो यूनिवर्सिटी की तरफ से आजादपुर की तरफ आ रही थी? नहीं नहीं, वो मॉडल टाउन अंदर में ही थी सर। वो अंदर का एरिया है, यहाँ पे मैकडी है मॉडल टाउन सेकंड में। वो वहां की तरफ, वहां पे एक में नजदीक रोड है, मतलब क्रॉस कर रही थी वो सामने से, अचानक से सामने क्रॉस कर गई। नहीं नहीं, सामने से वो क्रॉस कर रही थी चलो ठीक है। आपने उसके क्या नाम है, गाड़ी को पीछे से हिट किया था आपने या आगे से हिट किया था? सर साइड से, सामने से आई ना एकदम, तो वो क्रॉस कर रही थी एकदम से, और आगे से नहीं, साइड से। साइड से हिट कर दिया आपने? हाँ जी, स्कूटी की लेफ्ट साइड से हिट किया या राइट साइड से हिट किया? राइट साइड से सर। स्कूटी की राइट साइड से आपने हिट कर दिया यानी? हाँ जी। ओके। उन्हें कोई बड़ी या ऐसी कोई चोट भी नहीं आई। मैं कहा भी था, अगर कोई चोट चोट वगैरह भी नहीं आपको आई? कुछ लगी है तो मैं आपको हॉस्पिटल। ठीक है ठीक है। जी नहीं, एक चोट नहीं मिनट, आई, बस वो आर्ग्यूमेंट freeze, होती रही। freeze, freeze, freeze. Now जी reflect जी मैम। on what all has happened. Pawan has done good thing that he's asking probing questions. He's asking, what further details पूछ रहे हैं. What has Pawan missed is what is his concern? इस मोमेंट पे वो एक्सीडेंट के लिए कंसर्न नहीं है, उसकी कंसर्न है कि मुझे शाम को पुलिस स्टेशन बुलाया है, तो मैं अब उसके लिए क्या जी। करूं? आप जो प्रोबिंग कर रहे हो, सारी प्रोबिंग की टेक्निक्स अच्छी कर रहे हो, मगर आप गलत एरिया को प्रोब कर रहे हो, क्योंकि उसकी कंसर्न जी एक्सीडेंट की नहीं है। उसकी कंसर्न है इस बात की कि शाम को पुलिस ने बुलाया है, आप उस पर फोकस करो। जी मैम, शाम को पुलिस वाले ने बुलाया है। तो दीपक जी आपको, सॉरी पुनीत जी, आपको शाम को 7 बजे आईओ ने मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन बुलाया है? हाँ जी सर। ठीक है। तो आपको अगर आईओ ने बुलाया है तो आपको फोन करके बुलाया है या कुछ वैसे भी नोटिस भी दिया है पुलिस स्टेशन से? सर फोन आया था, उन्होंने मुझे बताया ऐसे ऐसे सर आपके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें आप एक्यूज्ड हैं, मतलब मैं आरोपी हूं। और मैंने जब उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके और पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये सेक्शन है, और बताया कि छेड़खानी का है। और वो मैडम का जो जो उस दिन जो स्कूल इंसिडेंट हुआ था, उनके हस्बैंड उसने करवाई है एफआईआर। उनसे मैंने जो डिटेल मांगी आईओ से, बाकी उन्होंने ज्यादा बताने से मना दिया। उन्होंने सीधा कहा कि आप शाम को थाने में आ जाइए 7 बजे। तो आपके पास कोई नोटिस नहीं आया है अभी तक ऑफिशियली? अभी कोई नोटिस नहीं आया सर। अभी फोन आया है कि हाँ हाँ, आईओ का फोन आया, वो कह रहे हैं कि मैं आईओ हूँ इसमें केस में, और आप शाम को जाइए मिलने, और जो भी बात है फिर थाने में बैठ के करते हैं। ठीक है। तो अभी दीपक क्या जी करना चाहिए सर मुझे? जी बिल्कुल पुनीत जी, पुनीत जी। हाँ जी पुनीत जी, जी जी फर्स्ट ऑफ ऑल, पुनीत जी फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आईओ का इस तरह फोन आया है तो ऐसे फोन पे आईओ आपको नहीं बुला सकता, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है सर? तो सर क्योंकि मुझे उसको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल 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 भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर थाने से कोई कांस्टेबल आता है आपको लेने के लिए, या थाने से आपके जी पास कोई लीगल नोटिस आता है अपीयर होने के लिए, या फिर कोर्ट से कोई लीगल अपीयरेंस जी के लिए कोई नोटिस आता है, तो ही आप जाओगे, अदरवाइज आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। तो मतलब हाँ जी। अभी अब उन्होंने अपनी आइडेंटिटी वगैरह सारी चाहिए थी, और हाँ कोई मैंने दिक्कत थाने में नहीं भी है। एक फ्रेंड से फोन करके पता गया, तो वहीं पे, तो अब मैं ना जाऊं कल को वो मुझे परेशान करें इस चीज को लेके कि हमने नहीं नहीं फोन कर सर, बुलाया था, बिल्कुल आप आए नहीं।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे आपको कोई परेशान नहीं कर सकता सर। Ma'am, we can't hear Ma'am, you. you are Your mute. mic is on mute. Ma'am, not audible, ma'am. पुलिस नहीं जा, पुलिस स्टेशन को बुलाएगा पुलिस वाला और ऐसे तो बुलाएगा, नहीं 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 जाओगे तो आपको तो मुश्किल हो जाएगी बहुत। नहीं होगी। आप नहीं कह वही मैं सकते कह रहा हूँ। एडवाइस में पुलिस स्टेशन मत जाना क्योंकि कागज नहीं आया। पुलिस वाले ऐसे ही फोन करके कहते हैं कि हाँ जी हाजिरी लगाना। सुनो सुनो तो सर, आपको पुनीत जी कहना पुनीत जी सर पुनीत जी सुनो। नहीं सर पुनीत जी 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 अभी हमारी उसको किस बात का डर है पुलिस स्टेशन जाने के लिए? मैं अरेस्ट हो सकता है कि नहीं, जी, पुलिस उसको मारेगी तो नहीं, ये सब हो सकता है ना। जी उसको मैम मैं किस बात का डर है पुलिस स्टेशन जाने के लिए? हाँ मैम वो एक से आप उसको एड्रेस करो। हाँ मैं उसी पे एड कर रहा हूँ मैम। एक से पुनीत जी, आप आईओ जी जी से आपकी अभी सिर्फ फोन पे बात हुई है, तो आप आईओ को जी ये बोल दीजिए कि अभी आप आउट ऑफ स्टेशन है, अभी नहीं आ सकते। साथ नंबर शेयर करूं आईओ का, आप एक बार आप बात कर लीजिएगा आईओ से। हाँ सर, मैं आईओ से बात कर लूंगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप अभी ये बोल दीजिएगा सर आईओ को कि मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता। और कल फिर आईओ को वो जो एफआईआर है उसको कोर्ट में सबमिट कराना होगा, उसके बाद हम देखते हैं क्या प्रोसीजर करेंगे। सर अब मेरा कंसर्न ये भी है तो कि अभी आप अपने तो मैंने क्लाइंट को एडवाइस दे रहे हो कि झूठ बोलो। नहीं, झूठ नहीं बोलने के लिए कह रहे मैम, क्योंकि इस तो है दिल्ली में ना, वेरी मच दिल्ली में। मुझे तो बोले जब तो दिल्ली में नहीं हूँ मैं। हाँ सर कह दीजिए वो कि फोन पे मैं मुझे ये भी बोल रहे थे कि आप थाने में सर वो अभी मुझे ये भी बोल रहे थे आप शाम में थाने में आ जाइए, जो भी मैटर होगा हम यहाँ बैठ के भी शाम में सुलझा लेंगे। अब मुझे डर लग रहा है या मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वहां जाके होना क्या। अब मैं जाऊं वहां पे, हाँ वो मुझे नहीं समझ में आया की बात कर रहे थे, तो मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ इस चीज को लेके, कोई और क्योंकि एडवाइस इसमें देना मेरा कोई चाहता है? कोई और एक्सीडेंट एडवाइस मेरा एक्सीडेंट था सर। मैं समझ गया सर आपकी कोई परेशानी, छेड़खानी का तो कोई बिल्कुल समझ गया। केस ही नहीं था। दीपक आप रुक जाओ, विवेक को देखिए, विवेक क्या कहते हैं। Ma'am, my advice is that I will go along. पुनीत को बोलना है, मुझे नहीं बोलना। So Puneet, I will go along with you to the police station. I will accompany you so that the police follows all the procedure and nothing wrong happens with you. And we will ensure that everything that is done within the legal procedure. If they go ahead, as 354 is a cognizable offence. सर 354A सर आपसे रिक्वेस्ट है सर मेरी, थोड़ा हिंदी में सर, हिंदी में बताएंगे सर। ठीक है, तो आपको ये बोल रहा था कि मैं आपके साथ चलूंगा थाने में 7 बजे, या तो मैं या दीपक जी आपके साथ चलेंगे थाने में, और हम ये निश्चित करेंगे कि जितने भी उनकी आगे की प्रोसीजर है उस सबको हम क्या कहते हैं ठीक ठाक हो, आपके साथ कुछ गलत ना हो। हाँ सर, वो आईओ सर ये भी बता रहे थे कि दूसरी पार्टी को भी उन्होंने बुला रखा है, 7 बजे थाने में ही बुलाया है। तो मैं अभी इसीलिए अकेले जाने में मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि वहां पे छेड़खानी का तो मेरा कोई था ही नहीं, सिर्फ एक वर्बल आर्ग्यूमेंट थी और उसमें भी उनको चोट वगैरह कुछ नहीं लगी थी सर। ठीक है, आप घबराइए मत, हम आपके साथ चलेंगे। जी ठीक है, जैसा आपने बोला चोट नहीं लगी तो हम एमएलसी की भी मांग सकते हैं, लेकिन स्टॉप। अब विवेक ने ऑफर किया है कि एज ए लॉयर वो जाएगा। क्यों जाएगा भाई? वो पैसे लेगा जाने के? मैम वो आगे बताने वाला था। हाँ नहीं, मगर आपको जाने की क्यों जरूरत है? क्योंकि हमने अभी सेक्शन नहीं देखा कि ऑफेंस इज बेलेबल ऑफेंस है। बोले चले जाओ, थाने से भी बेल हो सकती है मैम। नहीं, हमारी एडवाइस होनी चाहिए इस मोमेंट में कि वो बेफिक्र होकर चले जाओ, अरेस्ट तुम्हारी हो नहीं सकती इस ऑफेंस में। तो अगर ये बेलेबल ऑफेंस होगा तो वही हाथ के हाथ तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। अगर वहां कुछ ऐसा होगा, क्योंकि अगर वो कहे दूसरी पार्टी को बुलाए, तो उन्होंने अभी एफआईआर रजिस्टर की नहीं है, वो लोग पहुंचे होंगे। अगर आपको बुलाया ना तो वो सोच रहे हैं कि आपस में निबट जाए मामला, इसलिए बुलाया। तो इसे डरने की बात नहीं है, आप जाओ। कोई दिक्कत हो तो वहां से मुझे फोन कर देना, मैं 7 बजे फोन के आसपास ही मिलूंगी आपको। तो अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे फोन करना। मगर मेरे हिसाब से जो समझ जितना आपने बताया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो चाह रहे हैं कि आप आपस में रजामंदी से फैसला कर लो, उनको भी समझ तो आ गया होगा। और वैसे भी जहाँ पे आप एक्सीडेंट बता रहे हो वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं,
वो भी आप निकलवा लो, अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो वो निकलवा लेंगे। तो अभी तो आप जाओ, पहले शाम को मीटिंग करके आओ, फिर आके बताना कुछ और की जरूरत है कि नहीं है। वहां कोई दिक्कत लगे, कोई आपके साथ में कुछ बदतमीजी करे, कुछ आपसे मारपीट करने लगे, तो आप मुझे वहीं से फोन कर देना, ठीक है? ठीक है। हाँ, तो कोई चिंता की बात नहीं है। ऐसे तो वो पुलिस वाले ऐसे छोटे मोटे मामलों में लगाते भी नहीं है, कुछ FIR करते नहीं है। तो अगर उन्होंने दोनों पार्टी को बुलाया है तो सही बात है, दोनों को पार्टी को मिल के बात करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि अभी FIR भी होनी है कि नहीं होनी है। तो अब जाओ, आप मिल के आओ, फिर बताओ। वो IO ने तो मैम बताया मुझे FIR हो गई है। अरे अभी ना ये जो उनको आम आदमी का एक कंप्लेंट, क्योंकि आम आदमी को फर्क नहीं पता होता कि FIR क्या होती है और कंप्लेंट दर्ज होने क्या बात होती है। जी जी तो उन्होंने कंप्लेंट लिखा दी होगी, पर वो FIR उनमें से जी तब्दील करेंगे कि नहीं करेंगे, ये अभी वो फैसला कर रहे होंगे, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे। एक केस बनता है कि झूठा जी। मोटा लगा रहे हैं, तो इसलिए बुला रहे हैं वो। दोनों साइड वही मैम, बुलाने का मुझे कोई तो मतलब नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे कंसल्ट करना जरूरी समझा। हाँ ठीक किया, तो क्योंकि डर तो लगता ही है पुलिस वाले बुलाए तो। ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें जी चिंता की बात नहीं है। जाओ और फिर बता देना, कुछ और दिक्कत होगी तो बता देना, ठीक है मैम। ठीक है? चलो, ठीक है, बेहद थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू हाँ, दीपक जी। आप लोग ना ये अभी थोड़ा सीखो इसमें। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे भी मालूम नहीं था 498 का क्या कहानी है, इसकी 354A क्या है। अभी अभी किया तो देखा कि अवेलेबल है। तो यू कैन डू दिस साइमल्टेनियसली ना सर। अपनी यहीं पूरी अभी नेट पे हो, फौरन चेक करो उसका क्या स्टेटस क्या है ऑफेंस का। अवेलेबल है तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि उसको दो ही डर हो सकते हैं, या तो मुझे अरेस्ट करने के बुला करके, या तो मेरे साथ टॉर्चर करेंगे मेरा वहां पे। पुलिस से लोग आदमी यही बात से डरते हैं। तो उस डर को एड्रेस करो कि व्हाट इज हिज कंसर्न एक्सीडेंट की नहीं है। तो जब भी आप क्लाइंट को सुन रहे हो तो ध्यान दो, दिमाग लगाओ कि वो क्लाइंट की इमीडिएट कंसर्न क्या है, लॉन्ग टर्म में क्या होगी, शॉर्ट टर्म में क्या होगी, वो पता करो कि अभी शॉर्ट टर्म में उसको क्या रिलीफ चाहिए, लॉन्ग टर्म में क्या रिलीफ चाहिए होगा। तो अभी पुलिस के केस में बहुत क्लियर था कि वो शाम को 7 बजे पुलिस स्टेशन जाने से घबरा रहा है। उसको आगे पीछे झूठ है, ये सब है, वो सब बाकी कहानियां है, पर उसकी इमीडिएट कंसर्न है कि 7 बजे पुलिस स्टेशन में जाना है मुझे, मैं क्या करूँ। डरते हैं सब डरते हैं पुलिस वाले बुलाएंगे तो वो जब प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो आपको इतना उसको रिएश्योर करना है। और ये भी एक अच्छा ऑफर था कि मैं साथ चलूंगा, मगर दैट इज काइंड ऑफ, अब हर क्लाइंट के साथ में हम जाने लगेंगे तो हमारे पास तो अपने काम के लिए टाइम नहीं बचेगा। जब जरूरत है तो जाएंगे, पर इस केस में जरूरत है कि नहीं है पहले वो असेस करना चाहिए। सो ओके, आर वी रेडी नाउ फॉर डूइंग आवर एग्जाम? ये एक और दिन में प्रैक्टिस करनी है। हमारी लिस्टिंग के हिसाब से, जो हमारा शेड्यूल है उसके हिसाब से हमें कल और भी सिमुलेशन करनी चाहिए। तो कुछ लोग और तैयार होके आएंगे, वीडियोस का सेटअप रख के आएंगे जिससे हम देख सकें आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो कल हम 2-3, क्योंकि कल 1 घंटे की क्लास है, फिर शायद 3 सिमुलेशन हम कर पाएंगे। तो 3 लोग और तैयार होके आएंगे और हम जल्दी ही तारीख डिसाइड करेंगे जिस दिन हमें एग्जाम करना है, ठीक है? परसों मैं आपको कुछ फिल्म के क्लिप्स दिखाएंगे, उसका हम एनालिसिस करेंगे उन्होंने इंटरव्यू में क्या अच्छा क्या नहीं किया। सो वी स्पेंड सम मोर टाइम बिफोर वी होल्ड आवर एग्जाम। तारीख डिक्लेयर कर दूं? कितना जल्दी देना चाहते हैं एग्जाम? कमिंग मंडे? देखती हूँ इसमें शेड्यूल, देखती हूँ इसके लिए क्या कर रखा है शेड्यूल में। इनफैक्ट हम लोग थर्सडे से एग्जाम शुरू कर सकते हैं, से नहीं मतलब थर्सडे को एग्जाम का दिन रख सकते हैं।
क्योंकि हम पहले कल सिमुलेशन करेंगे, परसों कुछ क्लिप्स देख करके उन्हें एनालिसिस करेंगे और उसके नेक्स्ट डे एग्जाम। ठीक है मैम नेक्स्ट मंडे से रख लेते हैं मैम। नहीं, नेक्स्ट मंडे वो से लगातार क्लास है। हाँ, तो हम जल्दी हो रहा है। उतनी जल्दी चाहिए क्योंकि हम तो साइमल्टेनियसली करेंगे। आप लोगों को मैं ग्रुप्स भेज दूंगी, तो ग्रुप्स में जाकर के आपने मुझे जूम पे कर लेना, जैसे रिकॉर्डिंग कर लो, फिर रिकॉर्डिंग भेज देना मुझे, लिंक्स रिकॉर्डिंग। चलो 2 दिन सोच लो, मगर टेंटेटिवली हम थर्सडे को एग्जाम फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि हम जो ना फिर क्योंकि हमारे शेड्यूल के हिसाब से फिर हम केस प्लानिंग पे जा रहे हैं। So I think let's close this chapter and then we can go on to case planning. कि हमने टेलिंग पर्सुएसिव स्टोरी शुरू करना है 17 को, तो वो 17 को ना करके वो 21 से शुरू कर देंगे। तो 17 को आप एग्जाम दे दो इसका। मैम ग्रुप्स कब फॉर्म करोगे? आपने बोला था कि आज ग्रुप्स फॉर्म होंगे। हाँ जी, हाँ मैम, ग्रुप्स groups- अभी group एग्जाम में होगा तो ग्रुप्स तभी देंगे। तो पहले से आप लोग वो बेईमानी कर सकते हो ना, एक दूसरे को पूछ लोगे कौन क्या प्रॉब्लम है, वो पहले से नहीं बताएंगे, तभी बताएंगे उसी दिन। अच्छा, द ओनली क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क यू कि जब मैं ग्रुप फॉर्म करूंगी तो आई विल बी शेयरिंग योर फोन नंबर्स, जिससे आप अपने अपने ग्रुप्स बना सको। अदरवाइज तो फिर नहीं तो ऐसे कांटेक्ट कैसे करोगे एक दूसरे को ना, फॉर मेकिंग योर ग्रुप्स। So I have your phone numbers from the office. I'll be sharing. I'll put that on to the site. और आप अपने अपने ग्रुप्स में फिर उसी दिन वो बना लेना, ग्रुप्स बना करके जूम मीटिंग कर लेना। जूम मीटिंग 40 मिनट की फ्री होती है, यू कैन डू दैट। ओके, सो ओके, meet tomorrow. So 6 more people ready for tomorrow. Bye bye for today. Thank you so much, madam. Thank you, ma'am. Namaste.